Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है और ब्रो वाइट वॉश इन साउथ अफ्रीका. Yeah, I mean, clean sweep. White wash से जरा दूर रहते हैं. नहीं, कोई दूर नहीं रहे. है हम साउथ अफ्रीका. हाँ, वहाँ जाके मारे हमने. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए. Rainbow wash. Yeah, sure. I'll work with that. But yeah, I mean, Pakistan defeated South Africa by 36 runs in the pink ODI at the Wanderers, and they have now become the first side in the history of cricket, Sadi. No one has done it. Who have swept South Africa 3-0 in their own backyard. So I mean, that's an amazing result. वो अलग बात है कि मैं बिल्कुल खर्च हो चुका हूँ इस पॉइंट तक. Spent, bro. मेरे इवेंट के दौरान मैं मैच कवर कर रहा था. यहाँ आकर भी मतलब सही टाइम क्रंच है bro. बैक टू बैक शोज कर रहे हैं टाइम क्रंच में. But yeah, I mean, it was a phenomenal game and a phenomenal result for Pakistan as well. And पहले भी बता चुके हैं, they've now become the second team after Australia to win 3 separate bilateral ODI series in South Africa. मजे की बात ये कि कभी पाकिस्तान ने UAE अपने घर में नहीं हराया साउथ अफ्रीका को. साउथ अफ्रीका में जाके मार देते. सिर्फ वहीं पे 3 दफा ठोके हैं, मगर UAE या पाकिस्तान में कभी भी नहीं किया. But you know, like we've said plenty of times before, nothing can explain this team. No science, no math. They run on pure vibes. Sorry सईद भाई. Yeah. कोई साइंस जो है ना, यहाँ पे science is not the man, Saeed भाई. This, you know, phenomena which is Pakistan cricket is a proper drug. उसको जैसे भी कंज्यूम करना चाहते हैं करें, मगर ध्यान से करें. एडिक्ट नहीं होना. मगर हाँ भाई, फूंके पेरेंटल गाइडेंस के साथ फूंके इंजेक्ट करें, क्रश करके छोटे छोटे यू नो दानों में, या व्हाट स्मॉल ग्रेन्स ऑफ यूफोरिया, उसको इनहेल करें या स्नॉट करें. स्मॉल ग्रेन्स ऑफ यूफोरिया, दैट्स व्हाट इट इज मैन. वो यूफोरिया कभी कभार सादी उल्टा भी पड़ जाता. हाँ, पुट्ठा पहन है ब्रो. इसीलिए तो ओडी करने का खतरा है थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट में. बट नहीं, आई थिंक द टीम प्लेड you know wonderfully and they should be praised for it. इसमें कीड़े निकालने मत बैठ जाना. निकालो, वही काम है. अगर सड़ी हुई कौम मत बनना. Celebrate this win. Of obviously we'll be conducting a thorough analysis of this game. और वो तो खैर हमारी नौकरी है. But you have to praise the team and celebrate them at this point, क्योंकि यार बड़ा मुश्किल साल रहा है पाकिस्तान का. बहुत ही मुश्किल साल था up until that England टेस्ट सीरीज के भी फर्स्ट टेस्ट तक. हाँ, वो भी पहले टेस्ट के बाद तो बिल्कुल डिफलेटेड थी टीम. एंड देन दे केम बैक टू विन इट 2-1 एंड देन दे वन बायलैटरल ODI सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका. सो आई मीन, T20 क्रिकेट इज इन द शिटर. ठीक है. I mean, the test team is also Saudi a work in progress. अभी 2 मैचेस जीते हैं, वो भी घर पे स्पिन ले आए उसकी वजह से. वो तो लिटरली वो फैन हीटर्स और जो दूसरे फैंस थे, you know, sorry, patio heaters and massive fans. लेकिन एटलीस्ट उधर हमने एक टेम्पलेट तो एस्टैब्लिश कर लिया ना, फाइनली. बिल्कुल. I mean, that template will be used versus the West Indies as well. It may not work against teams like Sri Lanka, but तब की तब देखेंगे. You know, that's जब आएंगे वो तब देखेंगे. Yeah, that's not an issue as of now. But no, I mean, you've got to give a pat on the back to Mohammad Rizwan as well. He's brilliant captained this team really well. I mean, spectacularly, if you ask me. बहुत minor mistakes हैं इधर-उधर जो हम वैसे ही निकाल रहे होते हैं. Nitpicking कर लेते हैं, वरना तो overall he was brilliant. Yeah, and I feel कि team united है फिर से, और सब लड़ रहे हैं रिजवान के नीचे, and you can see, you know, from their body language that now they're enjoying their cricket again. You know, and they didn't seem like they were enjoying their cricket for the longest time. मतलब शाहीन और बाबर की reactions देख लो. They're having fun now. Absolutely. और वो पिछले शो में भी बात की थी कि 5 consecutive ODI series wins हैं. But I think Ahmed from Twitter pointed out to me that in the last 9 ODI series Pakistan has won 8. ठीक है, इसके अंदर एशिया कप और वर्ल्ड कप में बहुत बुरी performances हैं. We accept that. But you know, at a time where ODI cricket is like dying and pretty much on the vent, Sadi, it is still breathing. And Pakistan are bossing it, right? कोई एक तो ऐसा फॉर्मेट है जिस पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी लग रही है, और हम उसके ऊपर बाद में आएंगे. Definitely आएंगे when we talk about the Champions Trophy and Pakistan's, you know, preparations for it. But let's talk about player of the match and player of the series, Saim Ayub. Sayam Ayub. Sam Ayub. हाँ जी. ठीक है भाई, उसने यार मतलब I've said this before, I'll say it again. He is the future for sure. इसी तरह का एक बैटर है. He's the perfect prototype. फिलहाल तो he's the present. हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ. He is the present. His time has arrived. He is in the now, right? He has properly announced himself now. पहले तो मतलब थोड़ा सा उसने अनाउंस किया, अब तो उसने सीमेंट कर दिया वो. He's your best batter in the ODI team right now.
और वो इतना कोई फ्लूइड प्लेयर है यार, मतलब मलाई की तरह उसके चौके जाते हैं। सूरत अभी किसी ने एडिट लगाई हुई थी ट्विटर पे, कंपैरिजन ऑफ सईद अनवर एंड साइम अयूब शॉट्स, क्या क्या कमाल रील थी। झलक है सईद अनवर की बिल्कुल, एंड ही इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज शॉट्स एंड ही गोज आउट देयर टू पुट द प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन. He takes the game by the scruff of its neck and he attacks, and that's why I say he's the perfect prototype on which you model your limited overs batting. He is that guy. 100%. I am him moment हो गया उसका. Agreed भाई, इस पे तो कोई शक ही नहीं. मतलब यार if you look at the way he paced his innings, ठीक है, 54 balls में 50 की है और फिर 91 balls में 100 की है, तो जरा डिफरेंस निकालो ना. 37 balls में second 50 आई है. So, मतलब पहली वाली भी स्लो नहीं थी. नहीं. It was on the slower side. Almost run a ball. लेकिन 54 ball 50, I'll take it any day. And we keep talking about his range and how it is immaculate, right? Look at this innings. He drove to perfection, Saadi. There were straight drives, cover drives थी. There was वो इसकी past point वाली big drive है. Face of the blade इस तरह खोलता है कि it goes past point. Then there was like this drive past mid on as well. उसके अलावा यार he pulled, he hooked, he flicked them off his hips in trademark fashion. एक उसने फ्लिक मारी थी, मैं और अबू साथ बैठ के देख रहे थे एंड हम दोनों एकदम ना जिंक्स मोमेंट हो गया. We're like लारा वाली झलक आई थी उसमें, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन झलक आई थी. It is his signature style, right? That flick off the hips, and that's his pet shot. उसके बाद यार he slapped the point, or sorry, slapped the ball over cover point. ठीक है. Also versus spin, man, he paddled. ठीक है, and he swept. तो मतलब साइम ने पूरे ग्राउंड की हर कोने में बॉल फेंकी है यार. एक इसने छक्का मारा है ऑफ हिज लेग्स, बिल्कुल इसने सीधा उठा दिए टांगों के ऊपर से. ओए होए होए, फुलर लेंथ डिलीवरी थी और इसने ऐसी उठाई है. इट वाज लाइक अ डेवास्टेटिंग सिक कह दिया मैंने. सिक हो गए वो. नहीं. बहुत ही कमाल यार. और मतलब ऑफ हिज लेग्स एंड ऑफ हिज हिप्स तो इसकी गेम है ही है, मगर ऑफ साइड पे भी बड़ी शानदार गेम है. जिस तरह कवर ड्राइव्स मारता है या पॉइंट वाली ड्राइव मारता है या ये चपेड़े मारता है कवर पॉइंट के ऊपर से. या he's got it all and he uses his feet really well as well. I mean, I am a complete fan. इसका दिन था भाई, इसकी तो टॉप एज पे भी छक्का रख दिया. वो वॉन्डर से कमाल है, स्मॉल डिमेंशंस में. उधर तो हर एक को कोट पड़ती है. मपाका के खिलाफ टॉप एज लगी, वो भी छक्का हो गया. He also copped a blow. Right in the baby maker. Right in the baby maker. किसी ने लिखा हुआ था कि balls middle this series, Abdullah Shafiq 0, Saim Ayoub's nuts 1. Yeah, I mean that is fair. He did cop one of the family jewels और अच्छी खासी देर के लिए गेम रुक गई थी. मैं फिर गया था बाहर अपनी ढोलकी पे थोड़ी देर. मैंने कहा चलो यही मौका है. इसी तरह कर रहा था भाई मैं. इनिंग्स ब्रेक पे, ड्रिंक्स ब्रेक पे बीच में जा रहा था. बड़ी दुआएं मांगी थी वॉश आउट हो जाए. मैं कहा चलो नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, अच्छा यार 3-0 sweep. Yeah, who wouldn't want a 3-0 sweep, man? And I mean, look at him in this series. He scored his third ODI ton in this game, and he scored 2 ODI tons in this series. इसका रह गया था 100 T20 में. 98. उसने 2 कर दिया ODIs में. तो मतलब you'd have to doff your hat to Saim Ayoub. And out भी चलो अपनी शॉट मारते हुए हुआ. I have no issues with that whatsoever. बॉश की बॉल थी और वो वही हिप के he was trying to flick it off his hips. अच्छा एक सेकंड, सॉरी तुमने बॉश का नाम ले लिया. He was quick. Yeah, he was quite quick. I wasn't expecting him to be that quick. Clocking 140 plus. I hadn't ever seen him before this, so this was new to me, and I liked what I saw. बाद में बैटिंग में भी बड़ी फाइट दिखाई उसने, जिसके ऊपर हम आएंगे. But yeah, I mean, just to kind of go over Sam's numbers now after 9 ODIs, Saadi, he is averaging 64.4 with the bat. And he's also striking it at 105 plus. यार यही जो है ना पाकिस्तान जहाँ पे करता था, मसला होता था पाकिस्तान को विद इमाम उल हक. ऑल्दो अब्दुल्ला शफीक वो वाला रोल प्ले कर रहे, नॉट टू इमाम्स इम्पैक्ट, लेकिन हमें जो थी ना जिस चीज़ का मसला था, जो हम लैक कर रहे थे, दैट वाज दिस टाइप ऑफ प्लेयर साइम अयूब जैसा ना, कि जो आके फ्रॉम दी ऑफ 105 के स्ट्राइक रेट से मारे. वो नहीं मिला हमें. सो इट्स अ गुड थिंग कि साइम ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मारा. नहीं यार, ये मुझे लगता है कॉफी तुम्हारे पास आ मैंने दे दी तुम्हें कॉफी. ये कॉफी है या मैंने घूंट ली है और वो चाय नहीं थी, वो कॉफी थी, इसलिए तो मैंने तुम्हारे पास फेंकी. या आज बहुत केओटिक दिन है हमारी जिंदगियों का. सुबह से बस केओस चल रहा है. अभी तो आई एम पुटिंग अप अ फेस इन फ्रंट ऑफ यू, अदरवाइज आई एम ब्रेन फ्राइड राइट नाउ. लाइक आई एम कंप्लीटली बर्न्ड आउट. तो खैर हाँ, तुमने जो बातें की हैं सारी ठीक की हैं. ही इज
the sort of batter you need. हाँ. और इसी तरह आप आकर accelerate करना होता है, and 105 plus strike rate and averaging 64.4, that is a killer combination. अभी I know 9 ODIs only, it's still early days, but look at the evidence you've already gotten in these 9 ODIs. Also note that he's playing away from home. हाँ, अब सारे मैचेस अवे फ्रॉम होम खेला, सारे अवे फ्रॉम होम खेले. ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है, साउथ अफ्रीका में बाउंस और थोड़ी लैटरल मूवमेंट भी होती है. वो लैटरल मूवमेंट जरा टेस्ट्स में आएगी. That's where he'll be tested. But as far as bounce is concerned, a lot of Pakistan batters throughout history have been vulnerable. And Saim has got that locked down. मतलब उसको वो condition suit करती हैं. He works very, very well with bounce. वो हुक भी जो मारता है अपनी, बड़ी कंट्रोल में मारता है यार. और फिर ये तो हमने उसकी बैटिंग की बात की है. He took 1 for 34 in his 10 overs. He was brilliant with the He is ball. starting to become that genuine all-rounder that we hope that he can become, right? पहले वो part-timer था, then he was a bit more than a part-timer. अब वो 10 ओवर का बॉलर हो गया. यार मेरे लिहाज से तो इस सीरीज में उसे कम बॉलिंग दी गई. हाँ. लास्ट मैच में चलो 10 ओवर का कोटा करवा लिया, एक मैच में तो करवाई नहीं थी. आई थिंक इट वाज द सेकंड ओडीआई जब मैं कह रहा था यार एक ओवर तो ट्राई कर लो, बट आई थिंक इसको ज्यादा ओवर्स डिजर्व करता है. नहीं, और मेरे ख्याल से इसको फ्यूचर में मिलेंगे भी. देखो कैरम बॉल इसकी बहुत शानदार है. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट अ कैरम बॉल इज, वो जब आप उंगली इस तरह आगे फेंकते हो, मेंडिस टाइप, आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर होके भी आप बाहर निकालते हो. इट्स नॉट अ दूसरा, एंड इट्स मोर लाइक यू कैन पिक इट मोर इजीली, बट दे weren't able to pick it and he was ragging it, right? साइम के ओवर सबसे अच्छे ओवर थे, रोक के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था यार. उनको समझ नहीं आ रही थी. एंड आई मीन अगर बहुत ही नेट पे की होना तो he did drop a catch off his own bowling, Markram का, that was a difficult chance Markram was on 8, but yes, that was a difficult chance. But look, like you said earlier, future तो वह है ही है, but he is also the present, and the age of Saim Ayub has arrived. We are currently living in it, so cherish it, enjoy it, and yeah, celebrate your athletes. ठीक है, आपको हमारा तो काम ही यही है. We are in the business of glorification of athletes and then criticism of athletes. But जब जिसका वक्त आए ना जिस चीज को करने का, उसको दिल खोल के फिर करो, और तमीज से. हाँ, within bounds. ये नहीं कि मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें या किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट करें, हम लोग क्या हैं ब्रो उनके सामने. हाँ, ऊपर से यार ये भी आप याद रखो कि वो भी इंसान है. और दूसरी बात ये है कि क्रिटिसिज्म तो जायज़ है, सबका हक है, सिर्फ हमारा नहीं. हम चलो एनालिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, बट इवन एज स्टेक होल्डर्स ऑफ द गेम व्हिच आर फैंस आल्सो, बिग टाइम स्टेक होल्डर्स, यू हैव अ फुल राइट टू क्रिटिसाइज, बट यार पर्सनल नहीं होना. डोंट क्रॉस दैट लाइन, और बदतमीजी नहीं करनी. ठीक है, और हमारी कौम को थोड़ा आदत है थोड़ी ये बदतमीजी पे उतर आते हैं. तो खैर इस वक्त तो कोई उसकी जगह नहीं है. साइम अयूब इज अ नेशनल हीरो, ही इज अ नेशनल ट्रेजर एट दिस पॉइंट, एंड आई मीन लॉन्ग मे दिस कंटिन्यू. क्योंकि ये जिस फ्लूइडिटी से और बैटिंग करते हैं और जितनी इसकी रेंज है अभी, तो यार मतलब वीव सीन अ बिट ऑफ अनऑर्थोडॉक्सी एट टाइम्स एज वेल फ्रॉम हिम. इस सीरीज में उतनी नहीं नजर आई, मगर हमें पता है कि उसके पास थोड़ी बहुत वो भी गेम है. दैट पैडल इज एन एग्जांपल ऑफ इट, जिसने पैडल स्वीप मारी है, यू नो. So, I mean, great presence of mind. He knows where the fielders are at, and he's always looking to score runs. He's always looking to attack the opposition and put pressure on them. And this is what makes him a fantastic asset for Pakistan cricket, in particularly limited overs cricket. अभी टेस्ट क्रिकेट में पूरी तरह सोल्ड नहीं हूँ, मगर I would give him a longer rope. पता है इसकी फिट बात, जो सबसे फिट बात मुझे इसकी लगती है ना, he has different gears to his batting. He does. He plays according to we the saw situation. that in the first ODI, yeah. right? Plays according to the situation कि कहाँ बॉल थोड़ी सी तंग कर रही है तो मैं कुछ हॉलिडेट करूंगा. 2-3 और चीजें भी इसकी. एक तो ही इज अ टीम मैन. जब जब इसकी तारीफ करो यार, टीम की तारीफ करने लग जाता है. पॉमी ने भी पूछा था ना इससे अभी कि किस तरह का फील हो रहा है इंडिविजुअल स्कोर करके. ये बोला कहता है आई एम हैप्पी फॉर माय टीम. किरौंची का लॉन्ड है. और एक और इसकी बात बड़ी अच्छी है यार, ये है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है. बहुत बात करवा लो इससे या क्रिकेट खिलवा लो, इसको पता है ना अगर ये बॉल इसकी जोन में है, if it's a hit me ball, he'll go for it. He won't hesitate. अगर छक्का मारे और दूसरी बॉल फिर जोन में आ गई, फिर छक्का मार देगा यार. यही तो चीज चाहिए. इसने बार्टमैन के खिलाफ यही किया था. 6-6-4 और गेम वहां पे बिल्कुल पलट गई थी, मोमेंटम शिफ्ट हो गया था. ये लैग करते हैं हम एज अ बैटिंग यूनिट. बिल्कुल करते थे साइम के आने से पहले. बहुत चीजें वैसे तो लैग करते थे, और साइम के अंदर वो सारी लाइक ऑपोजिट चीजें हैं, व्हिच इज लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर डजंट कट इट. ऑनेस्टली इट इज लाइक अ स्टॉर्म ऑफ फ्रेश एयर. या इट इज अ फ्रिगन टोर्नेडो ऑफ फ्रेश एयर, सादी. एंड आई मीन yeah, I feel like we don't even know what his ceiling is, and I always used to maintain that he's just a notch below S tier. He's S tier, bro. I think he's S tier, and I feel like S tier. अब जब he's kind of found his feet in international cricket, it should only get better from here. Slumps आएंगे,
हर किसी के करियर में आते हैं, मगर फिलहाल तो भाई ही इज पाकिस्तान मोस्ट इनफॉर्म बैटर, ऑल्सो ही इज पाकिस्तान मोस्ट गुड लुकिंग बैटर। यू नो, इतनी खूबसूरत शॉट इस वक्त कोई भी नहीं मार रहा, जिस तरह बाबर ने भी 50 किया, मगर टाइम उस तरह नहीं हो रही थी बाबर से। Again, a slowish innings. मुझे slow लगता है, innings, man. according to Varun, I think. हाँ, Varun नहीं भेजा था ये. हाँ. This was his second slowest series in terms of strike rate. No, this was from Zaid Babar Khan, who This was works from Zaid. at, yes, उसने मुझे भेजा था। Okay. मैंने आगे तुम्हें उस ग्रुप में भेजा था ताकि तुम्हें याद रह जाए। शुक्र तुम्हें याद रह गया क्योंकि नोट्स में तो नहीं है। ठीक है, तो this was Babar's second slowest ODI bilateral series in terms of strike rate। एक न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में ही थी slowest भी, ठीक है। और फिर वरुण ने हमें आगे से एक और चीज भेजी थी कि अटैकिंग शॉट परसेंटेज भी second slowest है in his entire career। So I mean, I don't have many issues with that just because he's out of form। So I can, you know, give him that leverage कि यार तू टाइम ले ले, तू फॉर्म में वापस आ जा। And 52 of 71 is a slow knock। Very slow. और especially considering, you know, 50-64 balls में आई थी, उसके बाद बंदा थोड़ा एक्सेलरेट करता है। बाबर उल्टा मतलब he took Decelerate हो गया था. 7 more balls for 2 more runs। But चलो यार, back to back 50s will still give him confidence। It should. 100 रह गया उसका, बनता था। चलो, back-to-back 50s plus Pakistan clean sweeping South Africa, and South Africa should be Absolutely। to take the weight off his shoulders. And he'll and Rizwan and both of these guys, all the all format players will take fantastic, you know, confidence and momentum into the test series। But देखो, back to back 50s is still something, even if, you know, albeit they came at a slow rate। But चलो यार, conversion rate का थोड़ा फिर से मसला हुआ है अभी, जो पहले कभी से हुआ नहीं ODIs में तो ये शतक पे शतक जड़ता था ब्रो, मगर इस वक्त वो साइम बना हुआ है। साइम ने 3 मैच में 2 शतक जड़ दिए हैं। बट यार, ऑल आई विल से विद बाबर और विद रिस्पेक्ट टू बाबर इज दैट 2-3 चीजें सही भी कर रहा है। ही इज कटिंग द बॉल रियली वेल। ठीक है, कट पे या वो स्पिन हो या वो पेस हो, ऑन हुआ है। ठीक है, बाकी वी हैव सीन कवर ड्राइव्स इन दिस सीरीज। इस वाले मैच में मपाका को कवर ड्राइव मारी थी, और रॉक बैक कर स्पिनर को भी यार हीव किया था मिड विकेट के लिए, और मिड विकेट के रीजन में 4 के लिए। द प्रॉब्लम आई थिंक राइट नाउ इज द पुल शॉट। ठीक है, एंड वी सॉ 3 पुल्स इन दिस गेम। सही है, पहली वाली में भी बैट हल्का सा हिला था, तुमने देखा था? हाँ, और खैर चौके पे चली गई थी वो। दूसरी वाली ही nailed। That's the shot he got to 50 with, from what I recall। उन्होंने कंपैरिजन भी दिखाया था, सेकंड और थर्ड शॉट के डिफरेंस। और थर्ड शॉट पे वही उसने ट्राई की, खैर यार उसको लग गई थी पिछली बॉल पे। he copped a blow on his fingers and that might have played a role as well, but he went for the pull shot directly after that small little interval जिसमें फिजियो आया। He did duck a bit। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस नहीं, वही जो कंपैरिजन दिखा रहे थे ना, सेकंड वाली पुल शॉट जो मारी उससे प्रॉपर मारी है, थर्ड पे वो थोड़ा सा डक हो गया। वहां पे बैटल है उसका। was a half-assed pull shot। ठीक है, और वही मिड विकेट पे कैच। Didn't fully commit to it। मसला ये है कि he was out yet again, you know, to short mid wicket, वहीं पे होल आउट कर गया। नंबर सही है, मुझे कितनी दफा हुआ है? I think 5। I was Hmm. reading this somewhere। अब 6 दफा हो गया होगा। Maybe Crick Info comments में था 5 या 6 दफा तो कम से कम इस तरह आउट हो चुके हैं। हम देख के थक गए हैं, and we know that Babar will be equally frustrated, if not more, right? बल्कि ज्यादा ही होगा वो frustrated। But thing is that obviously he likes the pull shot। एक इसकी सादी शॉट होती थी जो ये फ्रंट फुट पे आकर ना हल्का सा इस तरह मनूवर करता था। It wasn't entirely a pull। He would just work it away। I haven't seen that in a long time। कॉन्फिडेंस से आती है ना ऐसी शॉट। Yeah, so when you're out of form उस तरह की शॉटें नहीं लग रही होती हैं। और ये पुल शॉट्स देखो, पहली वाली भी हल्का सा बैट हिला मगर ठीक एग्जीक्यूट हो गई थी, अच्छी पुल शॉट थी। दूसरी वाली तो ही absolutely nailed, right out of the screws थी वो वाली। It was racing away to the fence। और तीसरी वाली वही यार, मपाका के खिलाफ गंदी सी टाइम हुई है और आराम से। ये वो मिलर वाला कैच नहीं था फेफिकुएहो की बॉलिंग पे, वो तो इसने कस के मारी थी और वो मिलर ने पकड़ लिया। He hung on to it। This was the sort of catch that we could take, right? So look, बाबर की iffy innings in the sense इस तरह भी थी कि he got lucky। He got dropped on 10। 14 ने ड्रॉप कर दिया था पॉइंट या बैकवर्ड पॉइंट पे। सही है, उसके बाद यार एक रबाडा ने बॉल कराई थी जिसने लीव की थी, और उससे बाबर की भी आंखें फट गई थी। It was like, I mean, in the end you'd have to say well left, but like उसने लेंथ पे लीव की थी और वो बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से गई थी, and that was a terrific delivery by KG, and Babar knew it। उसके बाद रबाडा ने एक और बॉल कराई, इसने इनसाइड एज किए चौके के लिए। So इस तरह के मोमेंट्स थे where you were like यार बाबर क्या कर रहा है, डरा रहा था। फ्लूइड नहीं थी। हाँ, it wasn't a fluid innings at all, especially जब दूसरे एंड पे साइम खड़ा हुआ था और वो जिस तरह खेल रहा था। यार बाबर की हमें पता है किस तरह बॉल टाइम होती है। 2-3 शॉटें इसने उस तरह टाइम की हैं बस। एक कवर मारी थी, कट मारे थे, एक पुल। हाँ, तो 4-5 कर लो, चलो मैक्सिमम उसकी उस तरह टाइम हुई है, वरना इससे टाइम नहीं हो रही थी। एंड
I don't know how much of a role those or that blow to his fingers played. तुम ही कह रहे हो कि उसने डक किया था हल्का सा. हाँ, डक था. तो वो कंपैरिजन में मैं देख रहा था ना, ब्रॉडकास्ट में दिखाया. यार मैं म्यूट पे देख रहा था ना, गेम भाई ढोलकी चल रही थी. I know. मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ तुम्हें. But I would still say it's a positive series for Babar Azam because he did get back-to-back 50s and this is a guy who was woefully out of form. और पता नहीं कितनी देर से इसकी आई नहीं थी, 50 नहीं आई थी यार. 21 इंटरनेशनल इनिंग्स. That's crazy, right? For Babar Azam, a player of his caliber, who we still know is friggin' generational. देखो, he was very poor in the ODI World Cup as well. Yes. वहां भी 450 मार दी थी. मगर हम कह रहे थे बाबर, वहां पे फ्लूइड था. मैं वही कह रहा फॉर्म लॉस हुई हूँ. थी. हम कह रहे थे बाबर के कैलिबर का प्लेयर 450 भी मारे तो अच्छी बात नहीं है. He needs to score big. Yes. अभी हम 250 पे भी कह रहे हैं. यार जाहिर है आई तो है कुछ. इतने बड़े स्लंप के बाद अगर 2 बैक-टू-बैक 50s आई हैं तो यार you take that as a positive. इस वक्त लोग पीछे पड़ जाते हैं. He's a very convenient sort of cricketer to just bash. And I'm seeing all of these tweets कि यार पाकिस्तान जीत रहा है मगर लोग बाबर के पीछे पड़े हुए. तो यार थोड़ा easy हो जाओ. I think the time out in the middle will benefit him. और वही मैं कह रहा हूँ कि if there's any one batter right now जिसको मैं कहूँ कि यार तू ले पता है टाइम, वो बाबर ही है क्योंकि I want him to get back into form. Once he's back into form, तो फिर तो आपकी ODI बैटिंग is oh my solid bro, solid. और रिजू भी फॉर्म में. फॉर्म में. मतलब back to back 50s for him too. That was also back to back 50s for him as well. Or this was 53 scored of 52 It deliveries. was a very good knock. And he looked completely out of sorts at the start. इससे कोई surface judge ही नहीं हो पा रही थी. He was what 4 रन थे इसके कोई 11-12 बॉलों पे. इससे बाउंस नहीं जज नहीं हो रहा था. बिल्कुल भी जज नहीं हो रहा था बाउंस इससे. मुझे तो लग रहा था कि आज ये जल्दी जाएगा. मगर then he came into his own after surviving that tricky period, that tough period at the start, and he got his 50 or 48 deliveries. So that's better than run a ball, which is great. मैं चाहता हूँ कि रिजवान बस रन बॉल ही खेले. रन बॉल. मुझे यही चाहिए. I want Rizwan to be busy out there और जब इसकी जोन में आती है ये शॉट मारे जो कि ये मारता है. We all know that. इसका काम होना चाहिए स्ट्राइक रोटेट करे और बस रन बॉल खेले. एक इसने वो पुश डाउन द ग्राउंड मारी थी for 4 versus Mapaka, which is what kind of got him out of that rush. ठीक है, that's where it kind of shifted. उसके बाद यार लेग साइड पे तुझे पता ही है, थोड़ी सी इसको जरा हिप्स पे या थोड़ी आई लाइन पे भी दे दो तो he will swat them, swipe them to the fence. He did that like 2-3 times or maybe 4, I can't remember. 3 तो थी मेरे ख्याल से. काफी शोरूम में 3 एक उस तरह के चौके थे. Then he launched that 6 over long on versus Bosch. Completely, pick the bones out of that kind of shot, right out of the screws. Proper छक्का था वो. पूरी उसने मतलब रॉकेट ही लॉन्च किया था रिजू ने. एंड दैट्स गुड टू सी दैट रिजवान भी ना कैपिटलाइज कर रहे हैं मोमेंट्स को और वो भी रन रेट का ख्याल रख रहा है. स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट ODI, स्पेशली आफ्टर द T20 सीरीज. T20 सीरीज तो अलग ही केस है ना. फर्स्ट ODI में भी इतना गंदा आउट हुआ था. ये आउट गंदा हुआ था मगर बॉले 4 ही खेला था. अब आउट तो गंदा ही. रिजवान का ये यार आई थिंक नंबर 4 सूट्स हिम बिकॉज वो टाइम लेता है थोड़ा सा. मगर इतना आपको अब यकीन हो जाना चाहिए कि एक दफा वो सेट हो गया ना, then he's not going to just knock it around. When Rizwan decides to accelerate and he knows that he's set out in the middle, he will accelerate. He'll step on the gas. ODIs में. हाँ, ODIs में. अभी T20 में तो उसके काफी मसले चल रहे हैं और T20 का इस वक्त बात करने का फायदा भी नहीं है. आप जाकर पिछले पॉडकास्ट देख लो. हाँ, लेकिन लोग फॉर्मेट मिक्सिंग करते हैं ना. फॉर्मेट मिक्सिंग जरूर करते हैं. बट आई थिंक इट वाज अ वेरी सक्सेसफul सीरीज फॉर हिम इवन एज कैप्टन बट आल्सो एज अ बैटर. पिछले मैच में भी 80 of 82 and now 53 of 52. Perfect. So I take it man, आपको मिडिल ओवर्स में ये कंसिस्टेंटली रन्स करके दे रहा है. He also swept one, for 4. वो हमें पता है बड़ा अच्छा स्वीपर है बॉल का. एंड उसी तरह चलो टॉप एज करते हुए वो टॉप एज लग गई उसकी, स्वीप ही कर रहा था, आउट हो गया वो. Got no issues with that. I never have any issues when batters go out playing shots that they more often than not nail. हाँ, और मुझे थोड़ा सा इशू होता अगर सिचुएशन उस तरह की होती. हाँ, ये सिचुएशन पे कोई मसला नहीं. It was time to accelerate. He had been accelerating and ठीक है. You take that 53 or 52 any day of the week. And उसके ऊपर कप्तानी भी तो कर रहा है वो. So when your captain is scoring runs, everything is rainbows and butterflies. और विकेट कीपिंग भी कर रहा है. Oh my God, वो जो कैच था वो. I know साइम की विकेट है मगर वो है रिजवान की विकेट. एंटिसिपेशन ब्रो. यार व्हाट अमेजिंग और स्प्लेंडेड प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपने देखे कि मिलर वो शॉट मार रहा है, वो लैप स्वीप कर रहा है और आप लेग स्लिप बन गए हो यार. लिटरली लेग स्लिप बन गया था. So ये फिर रिजवान की चोंचले होते हैं छोटे-छोटे जो मुझे बड़े पसंद हैं. मस्कड़ियां जो हैं. He is such an intelligent cricketer and he is like completely switched on. He's there, right? Wicket keeping तो यार it doesn't get talked about a lot उसकी. It's his best skill.
It is. And he's a damn good batter. हाँ. You know? So this is like great stuff कि चलो बाबर रिजवान की 50s आ गई, they kind of batted around Saim. Saim got a ton. मगर फिर impact knock तो आपको दिया है ना सलमान अली आगा ने. सलू भाई. सलू आगा ने तो यार पता है he has not put a foot wrong in this series. हाँ. I know वो 71 रन 71 रन खा गया था पिछले मैच में, तब भी विकेट निकाल ली थी. Yeah. और I thought he shouldn't have been bowled towards the end. वहां पे पता है वही एक आधा ओवर साइम को दिया हो ना तो आपको इस चीज की जरूरत मत पड़े. Yeah. मगर यार सलमान अली आगा की क्या ही बात करें. I think he cemented his place in the ODI side. हाँ. मैं और साहब Now he has. कहते होते थे ये कि give this guy a longer role. इस बंदे को चांस दो ODI क्रिकेट में, he can crack it. And I think He has. based on whatever we've seen in this series, he's cracked it. हाँ. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आया ना ये भी स्ट्रगल कर रहा था. ये 17 of 20 था, मुझे अच्छी तरीके से याद है. सही है. और मैं कह रहा था कि यार सैल आगा तुम्हारा रोल ये नहीं हाँ, है इस वक्त ये नहीं चलेगा. हाँ. एंड देन ही स्टार्टेड हिटिंग दोस शॉट्स ऑन द ऑफ साइड हाँ. बिग टाइम. मतलब एक वो ओवर पॉइंट मारी है इसने, फिर ओवर द कवर्स मारी है इसने, एक छक्का मारा है ओवर द कवर्स. ऑफ साइड पे इसने गेम बहुत शानदार दिखाई है. बट इट वाज दैट रिवर्स बैट रिवर्स लैप 6. ये ब्रो कैसे ही इज इन्वेंटिंग न्यू वेज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट मैन. अच्छा खैर आई सीन दिस शॉट. हाँ आई नो, आई हैव वार्नर से देखी हुई है मैंने. मगर उल्टे बैट से यार रिवर्स लैप मार दिया छक्के के लिए. Come on. That's when you know that you're in form, man. जब इस तरह की शॉटें लग रही हो ना. So I mean, he's the guy. शॉट ऑफ द डे. Yeah, has to be shot You of the have day. to give that, that award of shot of the day क्योंकि वो बस it was some freak shit or freaky shit, right? But anyway, I feel कि he showed impetus when impetus was required and he played according to the situation. थोड़ा शुरू में स्ट्रगल किया बट वापस फिर आया और 308 तक जो आप पहुंचे उसमें सलमान अली आगा का बहुत बड़ा हाथ है ब्रो. उसके बगैर नहीं पहुंच रहे थे वहां. बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते थे. इट माइट नॉट गेट स्पोकन अबाउट एज मच. That's unfortunate. 50 नहीं है ना. एक बंदे का 100 है, 2 लोगों की 50 है, तो शायद सैल आगा की इनिंग्स इतनी हाईलाइट मत हो. बट आई वुड से दैट इट वाज अ मोर क्रंच नॉक देन बाबर एंड रिजवान. You'd have to say that. आउट बेचारा अनलकी हो गया यार. वहीं लग रहे थे उसकी चौके छक्के. कुछ नहीं होता. और वहां पे वो बाउंड्री रो पे आउट हो गया. ठीक है वो टाइम था मारने का. एंड में 4 विकेटें दस्ती गिरी हैं. बट उसके बावजूद अगर तुम नोट करो यार वो जो 2 चौके मार गए हैं, एक हसनैन which he carved through the covers और एक सीमो जो पोकी सा चौका था, छोटी सी पोकी सी मारी है उसने डाउन द ग्राउंड. वो 2 चौके बड़े इंपॉर्टेंट थे. साउथ अफ्रीका फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नीडेड रन अ बॉल. वो अगर लेस देन रन अ बॉल होता वो शायद फर्क तरीके से खेलते. सो दोस वर रियली रियली क्रूशियल फोर्स इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. एंड आई लव द फैक्ट दैट टेल एंडर्स आर कंट्रीब्यूटिंग. आई नो शीनो गोल्डन डक पे आउट हुए मगर मारते हुए आउट. हां लास्ट मैच में कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं. लास्ट मैच में 16 रन मारे थे 4 बॉलों पे उसने. 8 बॉलों पे 8 बॉलों पे 2 4s and a 6. और क्या चाहिए. Yeah, and I mean these guys are taking responsibility as well. लोअर ऑर्डर में आकर ये लोग चौके छक्के मार जाते हैं. आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक साइन फॉर टाइम्स टू कम. एंड आई मीन बाकियों की बात कर लेते हैं. बाकी भी तो बैटर्स थे. अब्दुल्ला शफीक. Yeah, 3 consecutive ducks now for my man Abdullah. This time he fell to Kagiso Rabada, edge to the slip cordon. वही वाला मसला है यार, कभी बैट पैड में गैप होता है तो बोल्ड हो जाता है, वरना आई लाइन के नीचे नहीं खेलता तो एज निकल जाती है. बॉय ने 7 बॉलें खेली हैं, 3 डक्स. नहीं 7 नहीं खेली, 7 खेली, 4 खेली हैं. नहीं 7 ब्रो. 2 गोल्डन डक्स हैं. नहीं पहले में 4 बॉलें थी. पहले में 4 थी. Are you sure? I checked. You checked? अच्छा चलो फिर कर लेता हूँ. फिर कर लो. इस वाले में तो डेफिनेटली गोल्डन थी. पिछले वाले में सिल्वर थी. पिछले में सिल्वर थी. या उससे पहले कॉपर डक थी. कॉपर. या हमने 4 बॉल डक को कॉपर बोला क्योंकि 3 बॉल डक ब्रॉन्ज डक हुआ ना. चलो ये जब तक चलेगा नेट तब तक हमारा टाइम ही निकल गया. खैर यार अब्दुल्ला को ये चीजें ठीक करनी पड़ेंगी. आई एम रूटिंग फॉर हिम बट आई मीन एट दिस पॉइंट यू जस्ट वांट फखर जमान टू रिप्लेस हिम. और मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि फखर और साइम को अगर आपने एक दफा ट्राई किया और इनमें से एक भी चल गया तो आपकी अयाशी है. दोनों चल गए तो आपकी वो ईद जीत गए. हाँ आप जीत गए. दोनों चल गए तो जीत गए और दोनों ना चले तो यार खैर है. कभी वो भी हो जाएगा. आई जस्ट वांट टू सी बोथ दोस गाइज ओपन. और मुझे नहीं समझ आती कि ये लोगों को लेफ्टी ओपनिंग पेयर से मसला क्या होता है. कभी राइटी ओपनिंग पेयर से तो मसला हुआ नहीं है. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. और चलो एक आउट होगा तो आ जाएगा ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन. 4 बॉल डक की थी. 4 बॉल डक थी. 7 deliveries played in this series, 0 runs and 3 dismissals. So that's really poor stuff from him. We keep calling him the standard deviation king. And why we say that is because now in international cricket, he's got 14 ducks and 16 50+ scores. And when he goes big, he goes massive. ठीक है? लेकिन वो भी यूजुअली टेस्ट क्रिकेट में नहीं. वो श्रीलंका वाला नॉक ओडिया वो बहुत अच्छा था. लेकिन देखो ना, आउट ऑफ दी 16 50+ स्कोर्स उसके 10 हैव कम इन टेस्ट क्रिकेट. या ना
That's true. 6 in ODIs. He has that penchant to go big, but you know he's gonna need to fix this. I वो जो think- एवरेज इसकी आपको डिसेंट लगती है वो इसीलिए लगती है क्योंकि बड़े स्कोर जो हैं बचा जाते हैं आपको. He doesn't get you those consistent 30s and 40s enough. I think this was his last ODI for a while. For a bit, yes. I mean, I would be really surprised if Tri Series में फखर इसको replace नहीं करता. He's got to replace Simon in the Tri Series. मुझे तो इसकी पोजीशन इन टेस्ट में आने वाले टेस्ट मैच में भी डाउटफुल होगी. जानी बैक टू बैक शोज वो तो करेंगे, मैं वैसे में बात करेंगे. लेकिन ये पॉइंट बताना जरूरी है कि मुझे लगता है उसकी अभी for a while I've got a international lot of cricket में- thoughts on this और तुमने टाइम क्रंच किया हुआ सो इस वक्त मुझे वहां मत फेंको. चलो, या वरना मैं फिर अगले 5 मिनट अब्दुल्ला ही बातें करता 5 मिनट ले सकते हैं हम अब. Yeah. कोई मसला नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंस है उसकी इस तरह की. थिंग इज कि टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक ही डिजर्व्स द साउथ अफ्रीकन टूर बट वो फुली आउट फॉर्म. वो फुली आउट. या मतलब आप फिर वो रिस्क क्यों लेना चाहो स्पेशली व्हेन यू हैव टू फिट बाबर आजम समवेयर इन द टीम. वो भी तो एक मसला है ना. प्रॉब्ली तो अच्छा चलो. हाँ, या तो कामरान गुलाम जाता है टीम से या अब्दुल्ला शफीक जाता है टीम से बाबर के लिए जगह बनाने में. इस पॉइंट पे अब्दुल्ला शफीक पे तो अब्दुल्ला शफीक को जाना पड़ेगा. इवन दो कामी जी आल्सो गॉट अ गोल्डन डक इन दिस गेम. लेकिन वो आया था सिर्फ मारने. आया था मारने मारते आउट हो गया फिसल गया बेचारा. गया. और स्पिनर लगा हुआ था. लोग वो रैम्बो ताप गया था उसके ऊपर इररिस्पांसिबल ये वो नहीं भाई. रैम्बो को तो I want कामरान गुलाम to do exactly that in those sort of situations. उसका मैचअप था क्योंकि वो स्पिन को डोमिनेट करता है. He tried, he slept, he got out for a golden duck, he just won you the last game. So no issues with him either. उसको कोई हम berate नहीं करेंगे. 0-0. हाँ कोई मसला ही नहीं है. So yeah, 3 golden ducks, but that's fine. ठीक है, शीनो वाले और कामी जी वाले को तो मैं कुछ कहता ही नहीं. अब्दुल्ला का हमने बात कर लिया how it's a big issue right now and both of us think कि उसकी टेस्ट में जगह भी जाती है. तोयब की बात करो. हाँ 28 of 24. He replaced Irfan Niazi in the team, which I don't think they should have done. I think Niazi को आप देते एक और गेम. उसको सही प्रॉपर चांस तो दिया नहीं है. आप बस बैक करते रहो उसे. वो फिनिशर रोल में he will come good. He's shown it to you in T20s. ODI क्रिकेट में नहीं दिखा सका अभी तक. and especially in a dead rubber game. बिल्कुल खिलाना चाहिए था नियाज़ी को. उसकी यार वो लॉन्ग लीवर्स भी हैं. उसके शॉर्ट आर्म जैब्स बड़े अच्छे हैं. He can muscle it past the rope. There's a lot to love about Irfan Niazi and there's also a lot to love about Tayyib. ऐसी बात नहीं है. और he impressed us in the T20s. ठीक है, और जिम्बाब्वे में अच्छा खेला है, ऐसी बात नहीं है. But I just felt कि यार you'd have to or you should have given Niazi more confidence. क्योंकि अगर इरफान नियाजी को आपने ग्रूम करना है एज अ फिनिशर then he's going to have a lot of failures. और बहुत अनफॉरगिविंग सा रोल है ना ये फिनिशर वाला. आपको कभी ऊपर भी भेज दिया जाता है कि आओ मारो, जिस तरह कामरान गुलाम के साथ हुआ है. वी वर सेइंग कि उसे 6 पे खेलना चाहिए, राइट? हाँ 6 पे खेलना चाहिए. उसको प्रमोट किया क्योंकि उस टाइम पे आपको एक्सेलरेशन चाहिए. चलो यार वो गेम के हिसाब से अगर आपने प्रमोट किया मुझे कोई मसला नहीं. I think that was fine. हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मुझे भी कोई मसला नहीं था. लेकिन रोल जो है ना वो वाला बड़ा अनफॉरगिविंग सा. अब यहीं पे नियाजी नहीं चलता, फॉर एग्जाम्पल मारते हुए आउट होता है तो सारे उसे बिरेट करेंगे. बिल्कुल. जो हमारे इधर मसला रहा है इवन विद द आसिफ अलीज एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये वाला रोल बहुत ट्रिकी रोल होता है और जहाँ जब तक कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स वहां पे ना दिया जाए ना तब तक प्रॉपरली आप जज नहीं कर सकते. यार आप देखो कि कितनी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसके अंदर उसको एक तो टाइम मिलता है, उस पर फिर जज करो. या तो फिर आप ये भी तो देखो ना कि कुछ टाइम से वो जब आएगा और करेगा वो आगे स्कोर आप लिखवा लो मुझसे. ही विल गिव यू दोज इंपैक्ट नॉक्स. 15 बॉल 30. सो यू count those knocks or weigh them much higher. Exactly. क्योंकि उसका रोल इस तरह का है. So I would have given him another opportunity. I wouldn't have dropped him for this game. मगर चलो वो तैयब को थोड़ा गेम टाइम देना चाह रहे होंगे. वो भी made sense to me as well. 28 of 24 wasn't the worst effort. It wasn't amazing. It wasn't stellar. But it wasn't the worst effort. I mean, he did slog sweep 14 for 6. वो बड़ा प्यारा शॉट था. बाकी उसके वही whippy shots हैं जो फेंटता है वो. ऑफ साइड हो लेग साइड हो ये फेंट ही रहा होता है. क्यों आते हैं उसकी कलाई है. I really want to have a Tayyib Tahir omelette in my life. फेंटता है ना जिस तरह वो मुझे खाना है. Tayyib. So yeah, he did smash Bosch for one of those whippy fours over cover. और फिर एक वो कुल्हाड़ा किस्म का axe smash था versus Rabada. शॉर्ट बॉल थी पूरी, इसने पूरी एक्स की तरह ही लाया है और कवर्स के ऊपर इसने चौका निकाला है. तो चलो यार ट्राई करता है. मुझे तैयब ताहिर की एक बात पसंद है. Tries. कोशिश करता है पूरी अपनी. You know, and that's what I liked about Kamran Ghulam as well, man. I can't fault him for that, you know. I don't blame him, can't fault the man for trying. Not at all, not at all. Tayyib यार चलो, death में 28 of 24 isn't like amazing.
बट इट्स नॉट लाइक वो कोई जान के स्लो खेल रहा था, वो कोई अपनी जगह पक्की नहीं कर रहा था, बस वो जो उससे लग गई और वो स्कोर पूरा करना चाह रहा था पाकिस्तान। वो इसी तरह का एग्रीकल्चरल बैटर है, वो आपको इस तरह, चलो एक तो उसने स्लॉग स्वीप नेल कर दी छक्के के लिए, मगर मोर ऑफ्टन देन नॉट ही विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर दोस गैप्स एंड काइंड ऑफ गोइंग ओवर द इनर रिंग फील्डर्स विद हिज विपी शॉट्स, एंड दैट्स फाइन। जो उसकी लिमिटेशंस हैं और जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं वो या उसके हिसाब से ही खेलेगा और अपनी स्ट्रेंथ्स पे वो फोकस करता है। सो आई एम कंप्लीटली फाइन विद दैट एंड आई एम गोना गिव हिम अ पासिंग ग्रेड, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये you're doing all right। मतलब जो उस्मान खान को मौके मिले हैं फॉर इंस्टेंस, अब आप उसके मौकों को कंपेयर करो तोयब और किसी और के साथ कंपेयर, कामी जी, इन दोनों लोगों को लो, तो इन लोगों की वो उस्मान खान वाली बिलिजरेंट गेम नहीं है, ठीक है, मगर ये कर कर दिखा रही। कामी जी के से तो मुझे कोई मसला ही नहीं, और पता है आई वांट हिम इन द टीम। आई थिंक रोल क्लैरिटी है इस टीम में, ओडीआई टीम, बिकॉज दे नो कि किस सिचुएशन में आकर क्या करना है और वो उसी हिसाब से खेलते हैं। सो आई लाइक दैट एंड आई थिंक कि ओडीआई फॉर्मेट जो है वो रिजवानी कैप्टनसी को सबसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि there are enough overs in it and he manages his bowlers really well. The field settings are always good. हाँ, कभी कभार गलती कर जाता है, एक यार सेकंड स्लिप रख देता शीनो के लिए तो मार्करम जल्दी आउट हो जाता, या वहां पे उसमें मेरे ख्याल से गलती की है थोड़ी सी, बट या ओवरऑल आई थिंक गुड कैप्टनसी, गुड बैटिंग। आपने यार 300 प्लस फिर से कर दिया, 2 games in a row, you batting first, you're scoring 300 plus. और क्या चाहिए? This is a bit alien for this particular Pakistan team, man. ये नहीं करते होते थे कंसिस्टेंसी से 300 प्लस। So जहां हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद बात करते कि यार they're only winning games in one particular way or method. They're completely reversed. You saw 2 different methods, right? You chased, चलो 240 is not a massive score, but that wicket was tricky. That was a tricky slow सी surface थी वो, और वहाँ पे सेट होना बड़ा जरूरी और आउट हो गए थे जल्दी आपके यार के दो बैटर्स चले ना वहाँ पे, ठीक है, साइम और सलमान, और उसके अलावा यार बाकी जब आपको थोड़ी फेवरेबल कंडीशंस मिली, सीमो का कैमियो भी था, can't undersell that at all. तो जहां आपको कंडीशंस बेहतर मिली हैं, ट्रू बाउंस मिले और सरफेस थोड़ी एड करी थी बैटिंग को, तो आपने 300 प्लस मारी, fully capitalized. And you know, if you talk about innings progression, this was a lot better from me. I know people will look at 42 for 1 in 10 overs and think oh ये क्या किया, मगर यार this was not the worst effort at all. You consider the overcast skies, the wet outfield, क्योंकि बारिश भी हुई है थोड़ी सी, वो ज्यादा नहीं हुई, बस थोड़ी सी हुई है, इतनी हो गई थी कि wet outfield हो गई थी, इतनी हो गई थी कि हमें शो करना पड़ा भाई, बादल थे आसमानों में, ये overcast skies, wet outfield, movement of the surface had a lot of juice in it in the first 10 overs, right? They could have easily been 2 or 3 down after 10 overs. They weren't. 42 for 1 थे, चलो वो बाबर कैच ड्रॉप हो गया, हाँ, बट यही पॉजिटिव था भाई, मेरे ख्याल से अच्छी एफर्ट थी, एंड दैट्स व्हाई वी कीप सेइंग क्रिकेट जो है ना कंडीशंस बेस्ड स्पोर्ट है। आप सीधा स्कोर कार्ड देखकर बोलो कि वो 42 for 1 in 10 overs ये फिर वही कर दिया, नहीं, ये फर्क था, एंड दिस वाज अ गुड एफर्ट टू गेट टू 42 एंड हैविंग लॉस्ट ओनली 1 wicket आफ्टर 10 overs, और 11.3 overs में 50 आ गई थी, ठीक है, wasn't the worst start. It wasn't the worst start at all, but look at how positively they played after that. अब आपको पिछली गेम में अगर याद हो तो बीच में स्लो हो गए थे, after 10 overs 10 to 20 42 बनाए थे, something 10 to 30 जो है ना स्लो हो गए थे, 10 to 20 में 36 बनाए थे, 36 बनाए थे, ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने कोई 85 रन बनाए थे, ऐसा कुछ था, उस 20 ओवर में कोई 80-90 रन आए थे सिर्फ, ऐसा ही था, 147 थे ना यार इन लोगों के एट द 30 ओवर मार्क। अब आप इस इनिंग्स में देखो, 20 ओवर मार्क में 98 for 1 थी पाकिस्तान, which meant कि 56, from 10 to 20 they scored 56 for no loss. We said this in the previous show as well, that this is all you need at this phase of the game. 5.7 हाँ, और 20 to 30 में यार बहुत अच्छा खेले हैं, 20 to 30 में तो एक्सेप्शनल खेले मेरे हिसाब से, they were 68 for 1 between overs 20 to 30 and 30 ओवर मार्क पे ये 166 for 2 थे यार, I would take that any day. पाकिस्तान अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान 166 for 2 हो ना 30 ओवरों में, मैं हमेशा ले लूं, पता है, क्योंकि फिर आप काफी अच्छी तरीके से अपने आप को सेटअप कर लेते हो 330 ऑड स्कोर के लिए शादी, क्योंकि सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई हैं, और ये थे भी 47 ओवर्स, एग्जैक्टली 50 ओवर्स होते तो शायद पहुंच भी जाते 330, बिल्कुल पहुंच सकते थे, देयर वाज एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट हैपनिंग और एवरी चांस ऑफ दैट हैपनिंग, एंड देन 40 ओवर्स में दे वर 237 for 5, अगेन ब्रिलियंट यार, अगर आप रन अ बॉल जा रहे हो ना 40 ओवर्स तक, आप आखिरी 10 में 100 कर 340 तक भी पहुंच सकते हो, एंड 71 for 3, चलो विकेटें गिर गई 30 to 40 में, मगर 71 runs regardless from overs 30 to 40. So look at how well they progressed. After every 10 over block, runs ज़्यादा आते गए, और फिर 47 overs में आप 308 for 9 थे, तो मतलब आखिरी 7 ओवरों में 71 once again. So 30 to 40 में 71
और फिर 40 to 47 में भी 47 71. वाह. इस सब में लाइक पहले ब्लॉक में 3 विकेटें फिर 4 विकेटें गिरी हैं, बट डूड दैट्स स्टिल लाइक 142 रन्स इन 17 ओवर्स. आई एम प्रीटी श्योर थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह होती ना कि 50 ओवर गेम होती तो शायद इतनी विकेटें भी ना गिरती, क्योंकि आके ऑब्वियसली आपको होता है 18 बॉलें कम है यार, वो कवर अप करनी है तो आप मारने के लिए जाते हो. एंड व्हाई आई एम पॉइंटिंग दिस आउट इज बिकॉज पिछले मैच में हमने थोड़ी सी क्रिटिसिज्म की थी इस पे. हमने कहा था यार 10 to 30 ओवर मार्क जो है थोड़ा स्लो था. आप 20 ओवरों में 89 for 2 थे शायद, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है. ठीक है, हमने कहा था यार 99 होता तो बेहतर होता. ठीक है, थोड़ा सा तो आप 36 रन किए थे ना उस ब्लॉक में. यहाँ पे देखो उस ब्लॉक में 56 रन किए हैं, 20 रन आता है. अच्छा खासा होता है. हाँ. ठीक है, और फिर उसके बाद यार 20 to 30 में 68, 30 to 40 और 40 to 47 में 71 ईच. दैट्स ब्रिलियंट, इट्स अमेजिंग, राइट? मतलब इसी तरह के अगर आप मॉडल से चलो कि आपने चलो 10 ओवर पहले तो काफी हद तक कंडीशंस बेस्ड है, बट मोर ऑफ्टन देन नॉट यू विल गेट फेवरेबल कंडीशंस. अब वो कैपिटलाइज करते हैं कि नहीं करते, ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. आई मीन इफ साइम ही है ना, साइम, अगर साइम और फखर हो यही कह रहे फिर तो कैपिटलाइज कर लेंगे. हो सकता फिर आप 70 भी कर सकते हो 10 में. ठीक है, और लोग करते हैं 70-10 में. ठीक है, एंड देन दे काइंड ऑफ स्लो डाउन अ बिट एंड देन दे एक्सेलरेट वंस अगेन आफ्टर द 30 ओवर मार्क. दैट्स बेसिकली द टेम्पलेट दैट्स गोइंग ऑन दीस डेज. साउथ अफ्रीका का तो खैर थोड़ा और डिफरेंट टेम्पलेट है, विल गेट टू दैट. मगर उनकी भी इनिंग्स प्रोग्रेशन की बात करते हैं. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं यार कि वी सॉ स्टार्क इंप्रूवमेंट इन द वे पाकिस्तान पेस देयर इनिंग्स कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ओडीआई. उसमें आखिरी 20 ओवरों में बहुत रन आ गए, 182 आ गए थे मेरे ख्याल से. आखिरी 10 में कोई 104 थे कुछ. इसमें यार आप स्टेडली आते रहो, हर 10 ओवर ब्लॉक में आपने बेहतर खेला है. सो आई मीन आई टेक इट मैन, आई फील लाइक यू नो एज फार एज इनिंग्स प्रोग्रेशन गोज, दिस इज द मॉडल, दिस इज द टेम्पलेट. परफेक्ट, यही फॉलो करो. लवली. मुझे समझाओ यार, हमारा रन ही कट गया एक. मुझे लगा था 1-2 रन मिल जाएंगे, पता नहीं डीएलएस की वजह से. Someone someday needs to sit down with me and explain the Duckworth-Lewis method to me. और change this method. आज तक नहीं समझा ये क्या होता क्या. पता नहीं, वो यूजुअली तो यार बारिश आ जाए इस तरह और आपकी ओवर कम हो जाए तो आपको थोड़े रन मिल जाते हैं कि आपने अकाउंट नहीं किया था. पाकिस्तान में कट गया रन, बट एनीवे दे वर इनफ रन्स. ठीक है, और 300 आपने फिर से टापा. गुड शो. साउथ अफ्रीका की इनिंग्स प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान. देखो 57 for 2 in the first 10 overs and their 50 came in 7.4 overs. So they played really well यार. वरुण ने हमें बल्कि ग्राफ भेजा है. ठीक है, उसके अंदर उसने दिखाया हुआ डिग्रीज ऑफ स्विंग जनरेटेड बाय पाकिस्तान सीमर्स इन द फर्स्ट 10 overs, जिसके अंदर शाहीन, नसीम और हसनैन ने बॉलिंग कराई थी. यार इतनी ज्यादा स्विंग हो रही थी. Despite that, South Africa scored 57 for 2 in 10 overs and got to their 15 7.4 overs. So you've got to give them credit for that. ये देखो ना, ये चार्ट देखो. मतलब crazy swing है यार. ये दिखा दो, सामने लगा दो, सब सामने लगा दो, नोमी टाइम नोट कर लो. हाँ, ये जो है ना डिग्रीज ऑफ स्विंग पहले 10 ओवरों में, दिस इज अननेचुरल ऑलमोस्ट. ठीक है, एंड आई मीन कमाल. वॉन्डर्स इस तरह का ग्राउंड है, स्मॉल डिमेंशंस वाला, और उस टाइम पे तो बैटिंग कंडीशंस भी ईज कर गई. ठीक है, I mean, this could have easily been 77, honestly. क्योंकि साउथ अफ्रीका तो खेलती है उस तरीके से. They despite that still got 57, which is good on them. But I think this is a win for Pakistan. First 10 overs. हाँ. ये जो you know इतनी ज्यादा swing हो रही थी, इसकी वजह से आपने 57 तक स्कोर एक तरह से रोक लिया. If you think about it, right? And 2 विकेटें यार, 2 विकेटें is very important. अच्छा, तुम नोट करो यार, हर 10 ओवर ब्लॉक में ना साउथ अफ्रीका लॉस्ट 2 विकेट्स. अब 10 to 20 में they scored 64 for 2. That's more than Pakistan. वो 30 overs तक more than पाकिस्तानी चल रहे थे. सही है, they were 121 for 4. They were ahead, हाँ. 20 ओवरों में 121 for 4 थे. 30 ओवरों में 195 for 6 हो गए. ठीक है, 74 for 2 was their score in the 20 to 30 10 over block. ठीक है, which is amazing. They were better than Pakistan in all the first 3 blocks. ठीक है, 10 overs, फिर 10 to 20 और 20 to 30. ये तेज जा रहे थे. फिर थोड़ा स्लाइड आया. 40 overs में they were 255 for 8, जो कि वैसे तो पाकिस्तान के स्कोर से ज्यादा था, मगर from 30 to 40 they scored 60 for 2. So here's the issue now. South Africa का रन रेट तो इस तरह का था कि एंड में भी वो ठीक था. They were not stressed for a scoring rate at all. मगर विकेटें गिर गई ना यार. हर 10 ओवर ब्लॉक में अगर आप 2-2 विकेटें ले रहे हो, इसका मतलब है कि you've consistently lost wickets throughout the game. ठीक है, आपकी मतलब छोटे छोटे फेजेस के बाद विकेट गिर जाती है, which honestly in ODI cricket won't cut it. नहीं. You cannot go big if you lose consistent wickets, especially in the middle overs. Wickets in at regular intervals ही तो टेम्पलेट होता है बॉलिंग साइड का यार. पावर प्ले में आमतौर पे यार 1-2 विकेटें गिरी जाती हैं, बॉल नहीं होती है. उसके बाद अगर आप देखो तो सक्सेसफुल साइड्स डू नॉट लूज अ लॉट ऑफ विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स. वो देखो ना, पाकिस्तान ने 1 विकेट लूज की थी पावर प्ले में भी, क्योंकि कंडीशंस वर टफ. मुझे लगता है
यहाँ पे साउथ अफ्रीका की एक विकेट गिरी होती ना तो उन्हें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाता। या साउथ अफ्रीका के बैटर्स पहुंच जाते हैं, स्टार्ट ले लेते हैं, अप्लाई करते हैं अपने आप को, फिर फेंक देते हैं सारे, बारिंग हाइंड्रिक क्लासन ऑफ कोर्स। उसके अलावा उस पे आएंगे, उसको तो प्रॉपर एयर टाइम भी देंगे। वो तो बंदा पता नहीं क्या ही है। The point I'm trying to make over here is that up until that 30 to 40 over bracket, South Africa were playing quicker than Pakistan. They were playing faster, right? But they lost 2 wickets each. 2 wickets each in each of those blocks. And that is where I feel like they kind of lost the plot. ठीक है, Pakistan in comparison did not lose wickets at regular intervals like South Africa. And that's why they got to 308. अब scoring rate wise तो यार इनकी 2 और विकेटें होती ये लोग जीत जाते, मगर नहीं थी. Yeah. So there are several ways of skinning the cat in ODI cricket. T20 में थोड़ा ना चेंज हो गया सीन. T20 में एक मेन स्ट्रीम हो गया है तेज खेलने वाला टेम्पलेट, मगर ODI क्रिकेट में I feel like you need to keep going at a steady pace for the longest time. Power play थोड़ा maximize करो if conditions allow, then keep going at a steady pace and then just go berserk at the end. Whereas South Africa never stopped going berserk. They just try to consistently hit. और यार उसमें फिर विकेट गिर जाती है. And I think that is something that they can reflect on because I feel like they've done this throughout and it's cost them. Right? विकेट गिर जाती है इनकी. तो पार्टनरशिप्स तो few and far between ही होती है बल्कि इनकी. हाँ, और एक बंदा ही अगर खेल रहा हो. और do bear in mind the 308 का जो टारगेट था, it was very very chaseable man. It was completely chaseable. ये छोटा ग्राउंड है Wanderers और यार just to give you context, Wanderers वो ग्राउंड है इसमें 430 चेस हुआ है. ठीक है? और कई दफा कमेंटेटर्स भी कहा, oh that's 6 and it's only because it's the Wanderers. And that's true. ये साइम अयूब के टॉप एज वाले छक्के की मिसाल ले लो यार. मतलब यहाँ पे आपको इतनी लंबी बॉल नहीं मारनी छक्का मारने के लिए, शायद 7 भी छक्का मार ले अपने टूटे हुए गोडे के साथ. अरे तो मेरे पे पॉइंट मारने लग जाते हैं. गोडे का मेंशन तो आना चाहिए ना. बट या मैन, आई फील लाइक यू नो कंडीशंस एट ईस्ट फॉर बैटिंग. उनके 10 ओवर्स जो थे शुरू वाले, डिस्पाइट द स्विंग कोई इतना मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से खेलना. द बॉल वाज कमिंग ऑन टू द बैट नाइसली एंड द ग्राउंड एज यू मेंशन्ड हैज टाइनी डिमेंशंस. स्मॉल भी क्या, टाइनी डिमेंशंस. तो ये इन लोगों ने ना थोड़ा मरवा ली अपने आपको कि दिस चेस वाज ऑन. बट फिर पड़खचियां दौड़ाई हैं हाइनरिक क्लासन ने. क्या पागल बंदा है यार. पड़खचर्स. ये पागल है. ये इस वाले पॉडकास्ट में क्लासन के लिए बनता है, डिस्पाइट साइम डूइंग वेल एंड सलमान डूइंग वेल एंड ऑल दोस गाइस. नहीं, क्लासन पागल है भाई. अगर तो किसी ने पड़खचर्स उड़ाए हैं तो वो क्लासन ने उड़ाए हैं. मैन, दिस गाय इज अ वन मैन आर्मी हु मेड लाइफ हेल फॉर पाकिस्तान ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली. वाकई मतलब कोई और नहीं था. इट वाज बेसिकली क्लासन वर्सेस पाकिस्तान इन दिस ओडीआई सीरीज. Throughout. हाँ मतलब he was the leading run scorer in this series. इससे ज्यादा runs किसी ने नहीं बनाए. He scored 350s back to back to back और सारी different. और सारी पागल. पहले वाले ओडीआई में consolidating 50, दूसरे वाले में थोड़ी तेज, इस वाले में पागल हो गया. 29 ball 50 man. And he ended with 81 of 43, nearly a 200 strike rate in an ODI, playing at number 5. Chasing down a total. 23 करोड़ पे रिटेन हुआ है. ठीक है, सनराइजर्स का 23 करोड़ कोहली की प्राइस से ज्यादा है. और अगर आप पाकिस्तानी में कन्वर्ट करो तो 50 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा. अगर मैं अपनी T20 टीम बना रहा हूं ना, मैं इस बंदे पे सारे पैसे पे. He is one of the first names on a global T20 11. मैं तो भाई. ठीक है, और अभी हमने बल्कि एक ये ड्राफ्ट भी करना है वनडे वाला. It'll come soon. अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मगर हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ना एक करंट ODI टीम्स का सारे बैठ के ड्राफ्ट भी करेंगे. क्लासन वुड बी one of the first names to go. अच्छा, ड्राफ्ट या ऑक्शन? ड्राफ्ट. चलो यार, ड्राफ्ट में ज्यादा मजा आता है. मजा तो आता है. It gives you more flexibility. It does, लेकिन ऑक्शन इज ट्रिकियर. दोनों कर लेंगे तो ये भी ठीक है. चलो जब आएगा तब. What's limiting us, right? टाइम. मगर यार हाइनरिक क्लासन के एक तो वो है ट्रेडमार्क सिक्सेस वर्सेस स्पिन है, जो ये एक टांग पे पीछे जाता है. He slightly rocks back. He doesn't completely rock back. हल्का सा उसका बैलेंस पीछे शिफ्ट होता है और फिर ये गुड लेंथ बॉल को चपेड़े मारता है नीचे ग्राउंड के ऑल अक्रॉस द वी. ठीक है, मिड विकेट से लेकर कवर्स तक यार वो इसका जोन है. वी से भी थोड़ा ज्यादा वाइड वी कर, कभी कभार वाइड वी हो जाता है यार. इसकी इतनी कोई कुत्ती रेंज है वहां पे. इसका वो शॉट है भाई. ही हैज इनोवेटेड क्रिकेट. ही इज अ पायनियर ऑफ दैट शॉट. आई मीन मे बी सम पीपल हैव काइंड ऑफ हिट दैट बाय मिस्टेक इन द पास्ट, लेकिन ही इज परफेक्टेड इट. दिस गाय इज इन कंप्लीट कंट्रोल. He is basically made it mainstream. और आगे जाकर जब आप फ्यूचर में शॉट बहुत देखोगे, जो कि देखोगे, यही होता है क्रिकेट में भाई. कॉपी करेंगे यार लोग. क्रिकेट में यही होता है, एक आधी चीज इस तरह इंट्रोड्यूस होती है और फिर पूरी दुनिया वो करती है. डगी मरेलियन ने इन्वेंट किया था वो दिल स्कूप जो था. हाँ जी,
अच्छा, तुम्हें वैसे पता है जितनी दफा सादी डगी मरेलियर I मेंशन कर love चुका है that ना guy. I love इस that guy. पॉडकास्ट पे, तो वाकई इसको बहुत He प्यार was the होना। innovator. कोई उसका नाम नहीं लेता यार. हाँ यार, Dougie ठीक है, Marillier नहीं, का. मैं तुम्हारे हक में हूँ। I love that guy. Good on you. But yeah, man, you know, completely like a lone warrior, Heinrich Klaassen, and I love to watch the man bat. पहले भी कह चुका हूँ कि even versus pace, he's got these short arm jabs and pulls and hooks. शाहीन की तो गोजो. पड़खच्चर्स तो शाहीन के उड़ाए हैं उसने भाई। उफ, मैं कहता हूँ 4 चौके नहीं 5 चौके, 5 चौके 1 छक्का. 4 चौके तो एक ओवर में आए थे, हाँ। उसके बाद फिर एक और चौका, चौका फिर वो और छक्का। छक्का। हमने सायम की छक्के की बात की थी, ऑफिस लेग्स। क्लासन का बेहतर था। क्लासन का तो कुछ और. क्लासन का पता नहीं वो क्या शॉट था भाई, एक तो इसने स्टेडियम से बाहर निकाल दी थी बॉल। कहाँ से इसका? आई थिंक जो साइम अयूब को इसने Power अपना generator. ट्रेडमार्क 6 मारा है ना, दैट वन वेंट आउट ऑफ द हाँ। स्टेडियम। मैन, दिस गाय इज लाइक अ डीमन, ही इज एन एब्सोल्यूट बुचरर ऑफ स्पिन। ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक आज तो पेस को भी ब्रो. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में इससे बेहतर स्पिन कोई खेलता है, मुझे नहीं लगता। पता नहीं ये नहीं, ये नहीं अब खेल- थोड़ा सा टेक्निकल आई नो थोड़ा टेक्निकल सवाल है, बट आई वुड यू नो क्या कहते हैं bet वो, your money on it. Bet Bet your your money house नहीं, on it. I'll tell you what the phrase is for this. I would go out on a limb अच्छा. and say that he is the best player of spin in Okay. South Africa cricket history. So yeah, man, I mean वो तो उसकी strength थी मगर जो शाहीन साहब इसने कर दी है, मतलब चलो शाहीन ने Shaheen out भी किया, had the last laugh though. yeah, but Heinrich Klaassen is a class apart. That's what he is. Class. And actually, Jared and I recorded footmarks on him, जिसका नाम ही यही है. A class apart. A class apart with a K and 2 A's. So you guys should go check that out. But man, I mean, very very unfortunate to end up on the losing side. मतलब आपने इस तरह की परफॉर्मेंस दी और आपकी टीम स्वीप हो जाए, Heinrich. और वो भी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी स्वीप ही नहीं हुए घर पे ओडीआई सीरीज में, और आपने इस तरह की सीरीज खेल दी और ये हो गया। तो आई फील फॉर हिम बेचारा। मैन। इस मैच में उसने कोई वैसे वो रोंद परे भी नहीं किए। क्या फाइन करना पड़ा है है? ना, हाँ, 15% का फाइन पड़ा। हाँ, जो हम बात कर रहे थे, हाँ। पॉडकास्ट खत्म करके गए हैं तो फाइन आ चुका था. पढ़ना भी चाहिए था हाँ, फाइन भाई, बेशक पूरा पूरा पढ़ना। बनता था वहां पे फाइन। बट लुक, आई थिंक दैट ये जो 2-3 साल रह गए ना इसके, या शायद 4-5 साल, He's 33. आई मीन ऑब्वियसली चार एक साल तो है. there will be a dip. I He's not any like he's not a spring chicken. ये बंदा 30 प्लस है जहां तक मुझे याद है। कीपिंग ना करे. हाँ, he's not the best keeper. वैसे भी कीपिंग छोड़ देना थोड़ा प्रेशर भी है. कौन करेगा कीपिंग यार, अब क्विंटन डिकॉक चला गया। Yeah. So that's I mean I don't know, Kyle Verreynne Is he a good limited overs option though? probably not, right? हाँ, इसीलिए तो नहीं खेला. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, why didn't they play Stubbs and Rickleton again? I don't know man. Stubbs को तो मैं probably saving Stubbs for test. Maybe, but like Stubbs ठीक है फेल हुआ पहले ओडीआई में यार, मगर we all know what he's capable of. मैं शुक्र है नहीं. मेरे पास उस तरह का टैलेंट हो, मैं तो उसको हर लिमिटेड ओवर्स गेम खिलाऊं। मैं तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है मेरे हाँ, हिसाब से, एंड बेशक। ही इज द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीकन बैटिंग। हाँ। ट्रिस्टन स्टब्स इज वेयर इट्स एट, ठीक है। और उसके अलावा यार, आई डिडंट इवन सी रायन रिकल्टन अगेन। No. आई नो टेम्बा हैज अ डिसेंट ओडीआई रिकॉर्ड, बट रायन रिकल्टन लुक प्रीटी गुड इन द फर्स्ट ओडीआई। कैप्टन है यार. कैप्टन है टेम्बा, मगर यार रिकल्टन जितनी फॉर्म में है, और वो लेफ्टी भी है। I'd play Rickleton over Markram at this point, honestly. Aiden Markram is such an interesting cricketer if you think about it. Interesting Heaps of भी talent. नहीं. वो तो Heaps. तब चढ़ती है उस पे, इसीलिए तब चढ़ती है. खूबसूरत बैटर। Beautiful. अच्छा, जो सारी हेट केएल राहुल को मिलती है ना, वो मेरे ख्याल से मार्करम थोड़ी वो मिली। मार्करम के पास फेंको यार। दिस गाय इज एन अनफुलफिल्ड टैलेंट। जो इसका पोटेंशियल है, ये उसके करीब भी नहीं पहुंचा। करीब भी नहीं है bro. He's a fantastic fielder. He can हाँ. roll his arm. He is a belligerent batter. And I mean, we haven't seen the best of Aiden Markram in international cricket, Not at all. unfortunately. कभी कभार trickiest of the pitches पे वो स्कोर कर देता हाँ. है, and that's it. That's वही की है इसने अपने करियर में. खैर, साउथ अफ्रीका missed a lot of people injury की वजह से। हाँ. केशव महाराज, आनरिक नोकिया, Yeah. लुंगी एंगीडी, Coetzee. Gerald Coetzee, Nandre Nandre Berger. Berger, Nandre हाँ. Berger is a big miss. या सो ये सारे लोग होते तो शायद थोड़ा फर्क होता सी, हो सकता था, हो भी सकता था, मगर खैर ये तो क्रिकेट है, देखो ये तो हो जाता है। मार्को यानसन एंड रबाडा जो है, ये तो इनके फ्रंट लाइन पेसर्स हैं. हाँ, हाँ। एक इसमें से पेसर खेलना था, probably Coetzee, I think. Yeah. या नॉर्किया में से, और एक महाराज बहुत बड़ा. महाराज बहुत बड़ा महाराज मिस था यार। बहुत बड़ा. क्योंकि वो 14 didn't really हाँ. trouble पाकिस्तान, हाँ. man. और महाराज, I just know for a fact बाबर की विकेट कि उसने उड़ा देना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान से नहीं खेला जाना था महाराज, ठीक है। बाबर की विकेट लेनी. बाबर की विकेट तो उसने पक्की लेनी थी। So it's really unfortunate that those guys missed out, particularly Maharaj, because I think they felt his absence the most. हाँ. Kwena Mapaka had his moments, right? हाँ, he was alright. ठीक है, पिट जाता है बेचारा, he's a bit wavered, but चलो यार, 19 साल का बच्चा है यार. 18 साल का 18 साल 18 साल का बच्चा 18 है। साल 19 साल का हो जाएगा. ब्यूटीफुल एक्शन, सही उसकी जान आती है, नजर आता है। कभी साइड ऑन देखो उसका एक्शन। Pacey has a good attitude, and I think he'll go a long. I love the kind of energy he हाँ. brings to the game, और जिस तरह वो कभी कभार ना heat of the moment में हाँ. सेलिब्रेट करता है और आंखें दिखाता है। आंखें दिखाते हैं ना. मुझे तो ये चीजें पसंद है फास्ट बॉलर में होनी चाहिए. You know, this is why I love Gerald Coetzee. हाँ. He has all of those He has things. that.
Yeah. He has that stain type dog in him. ठीक है? And he's also a fantastic competitor. So yes, South Africa were injury hit, but I think they just didn't get their lineups right either. Yeah, मुझे नहीं लगता ठीक खिलाएंगे. एक बीच वाले ODI में सेकंड वाले में रबाडा बिठा दिया. इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं आप निकाल सकते. और फिर आखिरी वाले में यार वही मतलब Fortin wasn't a like for like at all. स्किल सेट लाइक फॉर लाइक था मगर क्वालिटी तो लाइक फॉर लाइक नहीं थी. As much as I like Temba Bavuma, इमाद Fortin. By the way, किसी ने explain किया था इमाद क्यों कि he converted to Islam. वलीद पार्नेल टाइप सिचुएशन है. As much as I like Timbers Bavuma, Toyne Timber. I think he should give up the ODI captaincy, man. Toyne Timber. टेस्ट में करे कैप्टेंसी, वनडे वाली बात नहीं है इसकी. Toyne Timber. Toyne Timber. I agree. है ना? छोड़ देनी चाहिए. Yeah, because South Africa have all of these other batting talents like Ryan Rickelton. Ryan Rickelton should be playing. Yeah, he averages Tristan South like, should be playing. Temba averages like 43 at a strike rate of 88 odd in ODI cricket. He's got a decent record. He's not bad. बेचारा ज्यादा गालियां खा जाता है. ठीक है. और टेस्ट में तो बहुत अच्छा बैट. बेचारा छोटू सा है, फिर उसकी फिजिक पे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं. थोड़ा ज्यादा बुली होता है बेचारा. थोड़ा कुछ ज्यादा बुली हो जाता है. बट यस आई डू एग्री कि यार आई डोंट थिंक लाइक ही शुड बी कैप्टनिंग द ओडीआई साइड. टेस्ट में कर ले. टेस्ट करे. टेस्ट में फिट है. नो इश्यूज विद दैट. टेस्ट में बहुत फिट है. आजकल तो फॉर्म भी बड़ी लगी हुई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर. बट या सो गॉट द लाइनअप स्ट्रांग. Some injuries which hampered their progress, and again the format nahi, the template. ठीक है. I'm all here for throughout attack, all out attack. मगर फिर आप विकेट तो लूज करते हैं. और वहां पे पाकिस्तान के पास एज था. They kind of paced their innings a bit better. Not in terms of scoring rate, but in terms of consolidation. In terms of preserving your wickets for the end. But you know there were some other South African performers in this game. KG Rabada 356. और Rabada हमें पता ही है quality है. 356 is staple for him. But there's a caveat over here. एक न्यू बॉल विकेट थी अब्दुल्ला शफीक की. बाकी दो विकेट तो उसकी आखिरी दो बॉलों पे थी. तो टेक दैट 3 for 56 विद एन आउंस ऑफ सॉल्ट एज वेल. क्योंकि उस टाइम पे तो विकेटें उस तरह इम्पैक्ट नहीं लेकर आई. ठीक है. सो ठीक है. गुड शो. बाबर को ट्रबल किया काफी. एंड लाइक उसकी क्या ही तारीफ करनी है. और you know his records speak for themselves. He is one of the finest pacers to ever come out of South Africa. हाँ, for sure. Dale Steyn, Alan Donald, Sean Pollock and KG Rabada. बल्कि I'd probably take Rabada over Pollock. He was really good. He doesn't get that credit though, unfortunately. ये चार टॉप के Dale Steyn तो टॉप ऑन टॉप है ना. Dale Steyn number 1 है. You probably go Alan Donald. Yeah. अब फिर Pollock और Rabada के अंदर थोड़ा मसला पड़ जाता है. अब जहाँ पे अब ये करियर खत्म करेगा अपना तब हम जज करेंगे. मतलब पता है Pollock बुढ़ापे तक खेलता रहा. उसके नंबर्स नीचे आए उसकी वजह से. ये भी तो एक एलिमेंट है. लेकिन वो Pollock का फिर थोड़ी सी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज भी उसमें जज हो जाता है. I take Pollock the cricketer overall over Rabada just because of his batting. लेकिन फिर रबाडे ने भी ठोक दिया था नसीम को. हाँ लेकिन कुत्ता छक्का मारा था. और फिर एक जो उसने सीधा चौका मारा है नसीम के बिल्कुल साइड से, वो खुदा ना खासा किसी को बॉल लग जाती. आई मीन दैट वाज लाइक अ ट्रेसर बुलेट. या लाइक द बिग मैन रवि शास्त्री काइंड ऑफ डिस्क्राइब्स. मैं साउथ अफ्रीका की ये बात कर रहा था कि मेरे लिहाज से क्लासन के अलावा इतनी कोई नोटेबल परफॉर्मेंसेस सीरीज में नहीं थी. बट आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद कॉर्बिन बॉश. हाँ, उसने बड़ी फाइट दिखाई. एंड ही वाज प्लेइंग वेरी सेंसिबली. आई वाज रियली सरप्राइज्ड. वो कैलकुलेटेड एग्रेशन दिखा रहा था. अपने जोन में वो तो अटैक कर रहा था, वरना वो आराम से कंसोलिडेट कर रहा था. एंड ही वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड. 40 नॉट आउट ऑफ 44 डिलीवरीज. उस बेचारे को भी यार कोई पार्टनर्स मिल जाते तो कुछ काम हो जाता. बीच में यार यानसन ने भी आकर कैमियो खेल दिया. यानसन ने भी छक्के लगा दिए थे भाई. किसको लगाए इसने, नसीम को या शाहीन को? I don't remember. मुझे याद नहीं पड़ा. आई थिंक नसीम को लगाए हैं इसने. Can't quite recall. खैर आई थिंक अगर उस टाइम पे यानसन थोड़ा और रुक जाता और वो बॉश को थोड़ा सहारा दे जाता, मसलूसेस हो जाता पाकिस्तान के लिए. क्योंकि स्कोरिंग रेट वाज नेवर एन इशू राइट टिल द एंड. दे वर प्रीटी मच एट पार. रन अ बॉल चाहिए था उनको. जो विकेट्स इन हैंड होती तो वो फिर सुकून से चेस करते. मगर दैट्स वेयर दे काइंड ऑफ लॉस्ट दिस गेम. विकेट्स इन हैंड नहीं थी. I think that's where Rizwan played it very smartly. Yeah. Rizwan was brilliant with his bowling changes and stuff. जहाँ पे regularly आप wickets ले रहे हो और field placements और फिर वो अपनी catch, I think a breath of fresh air जो कहते हो ना कैप्टेंसी में. अगर आप देखो ना इंडिया को ODI वर्ल्ड कप में 2023, ठीक है, I know they didn't win it, but they were the best team in that tournament. Let's not, you know, fool around over there. Let's not mess about. ठीक है, one of the core reasons or contributing factors behind India's success in that tournament was middle overs wickets. And Pakistan did that in this game.
and throughout the series. Yeah. So that is, you know, a great formula to kind of win games of ODI Yeah. cricket. So I think वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज था पाकिस्तान को जो साउथ अफ्रीका उस तरह नहीं कर पाई. yeah. पता है रबाडा के ओपनिंग स्पेल के बाद आप कहते हो अच्छा अब किधर जाएं, ठीक है. और मपाका बेचारा, you know, I think he'd probably be better with the new ball. वो फर्स्ट चेंज करा रहा था. But Yeah. I've got no issues with Mapaka. I think बड़ी अच्छी सीरीज, बड़ा अच्छा लर्निंग कर्व था उसके लिए, एंड आई थिंक वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर उसे मिला ना इस सीरीज से, एंड गेटिंग सम विकेट्स, ऐसी बात नहीं है कि विकेट नहीं उसने ओडीआई डेब्यू पे 4 for लिया था. ठीक है, एक्सपेंसिव था मगर 4 for still 4 for. सो आई थिंक बड़ा अच्छा उसके लिए गोइंग इनटू द फ्यूचर ये सीरीज होगी. Absolutely no. I have high expectations from him. अभी 18 का है, अभी वो और डेवलप होगा. He's, you know, not fully mature yet. उसकी बॉडी भी पूरी तरीके से mature नहीं हुई यार. अभी उसके और मसल्स बनेंगे. Who's to say he doesn't clock 160 someday? You don't know that. 160 थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मगर 155 वहां तक तो पहुंच जाए. वहां तक पहुंचेगा. ऊपर से लेफ्ट आर्म क्विक है भाई. वो वैसे ही एट अ प्रीमियम होते हैं, और आजकल इनके पास तो बहुत है. Janssen, Berger, और अपना ये Mapaka. So they've got a few of those guys, man. Yeah, I mean, I think South Africa के लिए positives तो थे. I think Corbin Bosch was really good on debut. Heinrich Klaassen was batting on another planet. ठीक है, वो एक पिच पे खेल रहा था, बाकी सब एक पिच पे खेल रहे थे. वो अलग ही सीन चल रहा था भाई. And yeah, KG Rabada, ठीक है, you expect him to take 3 firsts, right? But overall, whilst they lost, there are some lessons to be learned over here, and they can come back stronger. It's still a quality unit. और अभी injuries भी थी, वो लोग वापस आएंगे तो ये और बेहतर टीम हो जाएंगे. और अभी विद चैंपियंस ट्रॉफी राइट अराउंड द कॉर्नर, आई थिंक ये बड़ी जरूरी है इनके लिए. दे नीड टू फिगर आउट. ट्राई सीरीज अब आनी है उनकी हमारे साथ, कि वहां पे आके क्या करना है. वहां पे आकर अपने जानीज आइडेंटिफाई करें कि कौन से जानीज खिलाने हैं. आप लोग भी जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं थ्रू 2-3 डिफरेंट थिंग्स, वेज. पहला है not Google Maps, ways. पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सब्सक्राइब कर लें. दूसरा है इजी पैसा. 0319360255 इज द नंबर फॉर दैट. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर के ऊपर. मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा. बहराम को ना करना, मुझे ना करना यार प्लीज. और अगर बहराम इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो क्या करें? So if you still don't have online banking, I mean we're nearly in 2025, अगर आपके पास अभी भी वो नहीं है तो यार मतलब if you are truly living under a rock, then साथ और मैं इस्लामाबाद में ही रहते हैं, ठीक है. और हमारा दफ्तर है इधर E11 मरकज में. ऑलराइट, सो ऑफिस भी स्टूडियो दोनों इधर हैं. आकर मुंह पे मारे हमारे 1500 रुपए, ठीक है. और आपको महीने के लिए पर 1500 जानिए तो पॉडकास्ट बना देंगे. ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज एज वेल. यू कैन बाय और गिफ्ट द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट एंड ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी. पाकिस्तान क्रिकेट की नाउ वो रेडिली अवेलेबल है, मगर और कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी यू नो डोमेस्टिक टीम हो, इंटरनेशनल टीम हो, दैट डजंट मैटर. बस ऑथेंटिक होनी चाहिए, नॉक ऑफ नहीं होनी चाहिए. और आपको पर जर्सी हम लोग 6 months के लिए जानिए द पॉडकास्ट बना देंगे. एंड आई हाईली इंकरेज यू टू बिकम अ जानिए द पॉडकास्ट, बिकॉज लुक, our mission statement in Pro Sports is that we're trying to change the landscape of sports coverage in Pakistan. And we are trying to enrich your sports watching experience via this chat and the podcast. यार ये sensationalism और मसालेदार खबरों से हम दूर जाना चाह रहे हैं. हम आपका experience enrich करना चाह रहे हैं, मगर हम know it alls थोड़ी हैं. You can challenge us, you can come debate with us, you know, anything. तमीज के दायरे में. No abuse, racism, discrimination, misogyny, homophobia, कुछ भी यार. रेसिज्म सीधा सीधा कट देंगे आपको, ठीक है. और मतलब बहुत एक एकेडमिक और लर्नड कम्युनिटी है यार. कम एंड नर्ड आउट ऑन क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स. एंड आई ऑलरेडी लव आवर एग्जिस्टिंग जानीज. दिस मनी दैट दे कंट्रीब्यूट गोज अ लॉन्ग वे. इट्स नॉट लाइक साद एंड आई पॉकेट दिस मनी, मैन. दीज फंड्स गो टुवर्ड्स मेकिंग दिस पॉडकास्ट फाइनेंशियली feasible. And if this podcast is a financial success, then we can bring even more grade A content to your screens. और यार गलतियां हमसे होंगी, ठीक है, कई होंगी, हुई भी हैं. यहीं पे आकर हम ओनरशिप लेंगे और ओन अप करेंगे उनको. आप भी हमें अकाउंटेबल रखो, हम भी अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं. मगर एक आपको प्रॉमिस ये है यार कि जहाँ तक होमवर्क, तैयारी और प्रिपरेशन की बात है, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़नी. मतलब इधर मैं ढोलकियों पे एनालिसिस कर रहा था. सो या एज सादी सेज #see the takeover. So become a Jani of the podcast man and come help us change that landscape of sports coverage in Pakistan. क्योंकि बहुत हो गया ये सेंसेशनलिज्म और मसाले वाली खबरें भाई. तंग आ गए हम लोग. अच्छा, इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स, दैट्स व्हाट वी आर प्रमोटिंग. एंड लेट्स कम बैक टू द क्रिकेट. पाकिस्तान की बॉलिंग भी आ जाओ भाई. तो पिछले मैच में बपाका ने ओडीआई डेब्यू पे 4 for लिया था. इस दफा सूफी मैक ने ले लिया यार 4 for 52 in 8 overs I believe on ODI debut. And what I'd like to point out over here is, चलो फर्स्ट बॉल विकेट ली उसने. फर्स्ट बॉल in ODI cricket he took a wicket. But that was not
ball worthy of a wicket. Markram- It was a half tracker. थैंक यू मार्करम. या मार्करम ने सही वो मारी नहीं, वो छक्का होना चाहिए था. सही है, इस तरह का हाफ ट्रैकर आप जाया नहीं कर सकते, तो वो चलो उसको फ्री में विकेट मिल गई, ठीक है. व्हाट अ ग्रेट वेलकम टू ओडीआई क्रिकेट. बट देन ही स्टार्टेड बॉलिंग सम फिल्थ. उसके बाद जो टांग पे कराई जा रहा था, वो भी क्लासन टाइप बंदे को. क्लासन ने फिर उसको नहीं बख्शा वहां पे, और फिर रासी ने भी उसको फ्री हिट पे सीधे छक्के के लिए ठोक दिया. सो आफ्टर लाइक 3 overs he'd conceded like 31 runs. और मैं कहता यार सूफी मैक बेचारा he's gone for 20 now, और इसने तो अभी बड़े ओवर कराने हैं, उसके बड़े ओवर रहते थे. बट what lays testament to his character over here is that he came back strong. He got the Jansen wicket and then he killed the game off at a time when नहीं समझ आ रही थी. रबाडा के 2-3 और लग जाते, क्या पता है क्या होना था. 2 छक्के वहां लग जाते, बाकी तो बॉश ही कर सकता था. But then he pinned Rabada LBW, और फिर पहली बॉल पे उसने विकेट ले ली अपने मपाका, ठीक है. And does he start the next ODI on a hat trick? Across games होता है ना, pretty sure across games ODI hat trick क्या होनी चाहिए, ठीक है. So I mean this is a real talent that Pakistan have got, which if nourished could really pay dividends. He turns the ball in both directions. I love his wrong gun. थोड़ा सा accuracy के लिए struggle किया उस पीरियड में, ठीक है, जहां पे इसने काफी कुट खाई है, मगर he came back strong. He ended up with 4 for 52 on debut. तो मेरे हिसाब से तो यार he gets full marks. हाँ for sure. और स्पेशली जब इतनी कोट पड़ गई थी ना इसे, उसके बाद वापस आना और इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस देना, और तो ठीक है टेल को उसने वाइप अप किया, लेकिन फिर भी जब डेब्यू पे होते हो आप नर्व्स किक इन कर रही होती, क्लासन आपको कोट के पता नहीं क्या कर रहा होता है, उसके बाद ये परफॉर्मेंस देना, आई थिंक सूफी मैक शुड टेक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस, एंड यू नो व्हाट, एंड शुड बी in the squad for the championship. He should absolutely be in the squad. Abrar Ahmed और आपकी spin bowling options थोड़ी बेहतर लगने You're sorted with those two guys at the moment, क्योंकि खैर South Africa are not great players of spin. Take Klaasen out और वो struggle करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वो भी element है. But लोग इस पे सही shade throw कर रहे थे जब जिम्बाब्वे के खिलाफ performances दी थी, और फिर एक मैच में फेल हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो पीछे पड़ गए थे. मुझे याद है, I remember you guys berating Sufi Mac. तो अब Sufi Mac को go and eat that humble pie, right? Because this kid is definitely talented, and I love the fact that Rizwan gave him confidence. पिटा वो, फिर भी रिजवान ने कहा नहीं बच्चे तू ही कराएगा. सलमान को भी ओवर दे सकता था वो, एक ही दिया. But I love the fact that he trusted Sufi Mac, and Sufi Mac then delivered for his captain. 4 wickets, man, killed the game. Where end तक भी I think 8 wickets down भी South Africa were in the game. You never knew. Rabada is no mug with the bat. उसके लग जाते होते हैं, उसके लगे भी हैं. और दूसरी तरफ सेट था कॉर्बिन बॉश, वो तो रेडी लग रहा था कि मैं वो भी अपने डेब्यू पे था, वो भी लग रहा था कि मैं आज जिता कर ही जाऊंगा. By the way, he's in the test squad, so you never know, we might get to see him again. But yeah, definitely pick up the bowlers. Sufi Mac, बाकी उन्होंने थोड़ी कुट खाई है लेकिन विक्ट्री. अब देखो शीनो के 7 ओवरों में 2 for 70 है फिगर्स, ठीक है, एंड दैट इज बैड. बट कंसिडर द फैक्ट कि क्लासन टुक हिम अपार्ट, ठीक है, और शुरू में थोड़ा चलो डिजोर्जी पीछे पड़ गया था, दोनों की विकेट निकाली उसने, दोनों की बाउंसेस निकाली. हाँ ही बाउंस्ड आउट टोनी डिजोर्जी विद एन एब्सोल्यूट रिप स्नॉटर, मैन. उसके बाद जो सेलिब्रेशन थी ना, नो वन वाज पिकिंग अप दैट वन. वो बच रहा था बॉल से, और फिर शीनो ने रख के शीनो ने जमीन पे बॉल मारी. सो उसके बाद यार हाइनरिक क्लासन 2 शॉटें मार चुका था उसे वहां पे, ठीक है. ही हैड पुल्ड हिम वंस, और फिर एक ऑफ हिज लेग्स उसने वो वाला छक्का मारा था, and he went for it again, ठीक है, and Shino got him out over there. क्या कहते हैं, square leg, deep square leg पे catch हो गया. So whilst he went for 70, ठीक है, in 7 overs, 10 की scoring rate पे, 2 very important wickets, man. Both the guys who were smashing him, he got them out. So had the last laugh. Yeah, he had the last laugh, and that's why I don't think it's a net negative performance. People will be like, oh, Shaheen बहुत पिट गया. हाँ, पिटा है. क्लासन पीछे पड़ गया था यार. क्लासन पीछे पड़ गया था. शुरू में डिजोर्जी बड़ा खूबसूरत खेल रहा था. कुछ छक्के डिजोर्जी ने मारे हैं यार. एक वो पता नहीं छक्का था कि चौका था जो उसने कवर्स के ऊपर उठाई है, और फिर एक इसने वही कुछ साइम टाइप शॉट मारी है, मगर थोड़ी डिफरेंट. फाइन लेग के ऊपर छक्का निकाला इसने. बहुत खूबसूरत शॉटें मारी उसने. ही इज अ टैलेंटेड लैड. He's a great fielder as well, outfielder जो है ना. I love the fact that South Africa are trusting kids with talent. ठीक है, the numbers may not be there, but you can just look at them and be like, ये अच्छे player हैं यार. ये डिजोर्जी फाइन एग्जांपल है इस चीज की. He actually does. Stubbs थोड़ा वैसे ही बेहतर है. नहीं, रिकॉर्ड तो उसका शुरू में ठीक नहीं था. They stuck with him. Yes, they absolutely did. तो ये 2 players इनके मेरे ख्याल से आगे जाकर बहुत अच्छा खेल सकते हैं. और डिजोर्जी तो फिर हैवी लेफ्टी. और that hair man. और कमाल आउटफील्डर bro. हाँ, he's a good outfielder. His hair reminds me of Andrew Simons. Rest in peace. Love that sort of hair. But yeah, just on Shino,
was expensive, but got 2 very important wickets. So do keep that in mind when you're judging his performance. बाकी सीमो भी यार थोड़ा expensive था. 9 overs में 63 का 7 की, उस पे भी वो भी scoring run rate पे गया. हाँ, so ये भी साथ की बड़ी important यहाँ पे बात है कि this is the Wanderers. अगर यहाँ पे bowler थोड़ा पिट जाते हैं तो it's not the end of the world. You almost expect के लोग पिटेंगे यहाँ पे. उससे पहले शाहीन ने कितनी फिट बॉलिंग भी करी है. ये भी तो देखो ना यार, और नसीम ने शुरू में बड़ा अच्छा स्पेल कराया है. 2 for 63 in 9 is not the worst performance. He took Bavuma's wicket early on, और फिर इसने जो बाद में 14 को आउट किया, वो तो अब्दुल्ला शफीक का कैच था भाई. कमाल कैच. कोई कंट्रीब्यूशन दे दी अब्दुल्ला ने. Finally. Despite all the ducklings, ठीक है, जो he's been serving so many ducks that it could feed all of Joburg at this point. सही है, but that catch was really good and I'm glad कि यार चलो उसको भी खुश होने का मौका मिला, क्योंकि बेचारा होगा mentally fried है वो. Mentally fried है, मगर I hope he is, like ये राज खान ने बात की थी ट्विटर पे कि he hopes that he's mentally tough because it will take some mental toughness to come out of this rut. और अब्दुल्ला का बहुत देर से अब lean patch चल रहा है. But anyway, that catch should bolster his confidence, and 2 for 63 by Naseem is also a good effort. I think Pakistan's best seamer though in this game was Mohammad Hasnain. यार वो जो यॉर्कर मारा है ना उसने, गज आउटस्विंग कर रहा था. ब्यूटीफुल. मतलब वो बॉल आती थी अंदर, फिर बाहर पड़ती थी. I'm so happy for him. इतने ज्यादा प्लेज एंड मिसेस थे ना of people trying to cut him but failing. And 1 for 41 in 7 overs on this surface is pretty good. That's less than run a ball. और यार उसकी जो विकेट थी वो विकेट ऑफ द गेम थी. ठीक है, इट वाज अ टो क्रशिंग यॉर्कर व्हिच हेल्प्ड ट्रैप रासी वैन डर डूसन एलबीडब्ल्यू, और रासी अच्छा खेल रहा था. रासी वाज लुकिंग गुड आउट देयर. लास्ट रासी ने कुछ कवर ड्राइवें मारी है जो वो बस टच कर रहा था चौका. मैंने कहा यार ये तो जान भी नहीं मार रहा, ये तो बस सीधा टाइम कर रहा है. तो उस वक्त आई थिंक सबसे क्रूशियल विकेट इस पूरे मैच की क्लासन से भी ज्यादा वो रासी की विकेट थी, क्योंकि क्लासन का ये है यार, अकेला तो वो काफी कुछ कर जाता है, बट he doesn't have this tendency, but South Africa have shown a tendency that he runs out of partners. You know, और आप ये भी कह सकते हो क्लासन भी मतलब थोड़ा आहिस्ता खेल लेता, मार दिए थे छक्के, रन रेट नीचे आ गया था, बट उसके लग रहे थे वहां पे भाई, तो उसने मारा वहां पे. I wouldn't blame him for that either. But I think Hasnain, 1 for 41, people again will look at the scorecard and they'll be like, ये तो कोई खास नहीं है, मगर यार काफी अच्छा करा रहा था. आप जाओ ना वो वरुण वाला ग्राफ लगा दो फिर से, look at those degrees of swing, man. टाइम नोट कर लेनो में इधर फिर ग्राफ लगाना, फिर ग्राफ लगाएंगे. वो बड़ी ज्यादा स्विंग कर रहा था, एंड I love his attitude. Hasnain is a competitor. I love him, man. Yeah. और Hasnain पता है जान मारता है, और तेज करा रहा था. He was the fastest bowler on the day. 146 something. 146.8 इसने क्लॉक की है, and he looked quite rapid as well, and he was rushing South Africa's batters, and I mean I'm really happy for him. I feel like Pakistan को इसने बहुत ज्यादा बड़ी ऑप्शन दे दी है कि यार तीनों पेसेस में किसी का बहुत बुरा वक्त चल रहा हो तो डाल दो इसे, सीधा डाल दो. करा भी लेता है. अब देखो ना, फर्स्ट चेंज कराई है. आई लव हिम विद द न्यू बॉल, बट फर्स्ट चेंज सो आई इफ यू गॉट नसीम एंड शाहीन, फिर फर्स्ट चेंज ही कराया. मगर देखो ना, फर्स्ट चेंज उसने बड़ी अच्छी कराई, बहुत अच्छी कराई है. या और थोड़ा सा बीच में उसने वो चौके चौके दे दिए, वरना ये और कम रन्स थे. he was good. I'll 6 से नीचे ही है ना इसका इकोनॉमी. I'll say it again, he was Pakistan's best pacer on the day, and that Rassi van der Dusen wicket was the best wicket of the day. So good on you, Hasnain. Thank you, Shabazz Chaudhary. Thanks. Shot yaar, Shabazz. चौही साहब. अननोन मैड बॉयज देखो ब्रो, या अननोन बैड बॉयज है वो जो भी है वहां पे, वो शॉट है यार शहबाज वाली. The best bowler on the day was Saim Ayub though. Yeah. Best bowler of the day was definitely Saim Ayub. 1 for 34 and 10 after scoring a ton. Right? He completely owned the Wanderers. ठीक है, याद रखेगी Wanderers वाले crowd. आया था Saim. जैसे बड़ा शानदार crowd है Wanderers का. कमाल. I really wish to see or witness a game of cricket from those stands one day. बहुत ही मतलब खुले दिल के और याशी कर रहे हैं, शुगल लगा हुआ है, इंजॉयजियां चल रही हैं. पिंक हुआ है पूरा क्राउड. बस जब क्लासन आउट हुआ था थोड़े सैड हो गए थे, मगर हाँ पिंक हुआ है पूरा क्राउड. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, we're always here for that. Although I prefer South African baby pink as opposed to shocking pink. ये वाला थोड़ा सा मजा नहीं आया, ज्यादा आंखों में लग रहा था ये कलर. मगर यार नहीं साइम अयूब मतलब he could have had 2 had he caught Markram off his own bowling. कैरम बॉल इसकी नहीं पिक हो रही थी, and he was getting the ball to rag. वरुण के मैसेजेस आ रहे थे कि what is Saim Ayub doing? And we've said this before, we'll say it again, he's on his way to become a genuine all-rounder for Pakistan. This guy has it. एक विकेट जो ली है वो भी मैं कहूंगा 50% इसकी थी, 50% रिजू की. वो तो रिजू की विकेट है यार, वो रिजू की एंटिसिपेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड है भाई. ठीक है, साइम ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, मगर वो विकेट रिजवान दे गया. सॉरी साइम. मगर यार just to kind of describe Saim Ayub in a few final words. He has it. He has it. It है. In caps. IT. Yes. Yeah. Information technology. No. नहीं. Fucking around with you guys. He does have it. Yeah. And he has that with the ball, with the bat, and in the field.
कैच भी तो Catch पकड़ा भी इसने, पकड़ा, और- बवूमे का कैच इतने पकड़ा मजे से कैच पकड़ रहे आराम हैं, से ये- सुकून से पाउचियां. चलो या निकलो, या या शाबाश. हाँ, बाकी we spoke about the lapses earlier in the game. साइम यू फैन बॉयज बन गए हम. बनना चाहिए यार. फैन क्लब का पार्ट नहीं है लेकिन. हाँ, किसी भी फैन क्लब का पार्ट नहीं है. But I would judge people who don't like Saim, man. सही What's बात. not to like? He's so beautiful to watch. वरुण इतना बड़ा फैन है भाई हाँ. साइम अयूब का. Yeah. मुझे बोल रहा होता कि यार ये बच्चा बड़ा फिट, बहुत fit और बच्चा है है. वो बच्चा फिट, ठीक है, और वो वैसे भी फिट है. फिटनेस भी अच्छी है उसकी. अच्छा. So yeah, as far as lapses are concerned, we've already spoken about them. हाँ. 14 का ड्रॉप था Drop बाबर में, वाला. yeah. साइम वाले ड्रॉप को भी हाफ चांस था वो. हाँ. तैयब ने एक रनआउट मिस किया था. I think दूसरे एंड में फेंकती थी, उससे सामने रनआउट हो रहा था. I missed that. He was trying to run Bosch out और रबाडा बिल्कुल सामने रन आउट हो रहा था, तो वो अच्छा. उसकी वो लैप्स. और रिजवान ने सेकंड स्लिप नहीं रखी थी शीनो के लिए, जिसकी वजह से वो चौका निकल गया, बट नो मेजर वो fielding laps तो नहीं है. अच्छा, so now just to kind of cap Wrap it this up, off, the Champions Trophy defense is on. I know this team still has holes. और होल्स की बात करें तो यार, डिस्पाइट कामी जी एंड तैयब ताहिर एंड इरफान नियाजी, लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़ा मसला जरूर है, ठीक है. बाबर की भी वो वाली फॉर्म नहीं लगी हुई डिस्पाइट द बैक टू बैक 50s, वो भी थोड़ा सा मसला है. फखर जमान आएगा, रिप्लेस करेगा अब्दुल्ला शफीक को, वी बोथ थिंक. थिंक ही है. नहीं, अब कर ही लेगा यार, after 3. पता नहीं इनके क्या मसले, अगर ना हल हुए तो फिर बैक टू बैक डक्स के बाद आइडियली तो आना चाहिए फखर. तुम कह रहे हो कि वो सियासती. हाँ, मुझे नहीं, वो हो जाएंगी हल. होपफुली हो गई हो यार. भाई इतना मीडिया प्रेशर आएगा ना अब, यार, और तुझे पता है पीसीबी ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स अंडर मीडिया नहीं प्रेशर. फखर तो आना चाहिए, पहले से होना चाहिए. आप चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंस से फखर को नहीं रखोगे, नहीं, ये तो ज्यादती हो जाएगी. तो उसने आपको ट्रॉफी दी हुई है हाँ. फखर जमान ने. तो हाँ, वो एक मसला वहां अगर हल हो जाता है, फखर और साइम ओपन करते हैं, वही वाली बात है. एक चलता है तो ग्रेट, दोनों चलते तो मैच जीत गए, खत्म. बाबर की अभी उस तरह टाइम नहीं हो रही, मगर चलो बैक टू बैक 50s हैं, हल्का सा वो इशू है. रिजवान नो इशू. सलमान अली आगा आई वुड से नो इशू, ही बैट्स एट 5 फॉर मी. Kami G, despite having a brilliant game, probably the best he's ever batted as far as aggressive batting is concerned in the second ODI, I still think थोड़ा सा question mark है lower order batting पाकिस्तान है तो सही, ठीक है. मैं भी मानता हूं. आपकी उस लेवल की लाइक फायर पावर उस तरह आपकी प्रूवन नहीं है अभी. हाँ, अभी ये नहीं है, ठीक है. They haven't done it for a long time. मसला ये है ना, और कोई ऑप्शन भी नहीं नजर आ रही ना. Yeah, but you know the pace bowling looks good. Yeah, Naseem, Shaheen, हमेशा लगती है लीडिंग अप टू अ बस अब टूर्नामेंट. दुआ करो कोई इंजरी ना हो जाए. लीडिंग अप टू अ टूर्नामेंट हमेशा लगती है. ODI World Cup में Pakistan would have had a better campaign if Naseem Shah was available. I can say that with complete confidence. But the pace bowling looks good. और यार सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि spinners थे ही नहीं. You were basically spinnerless with Shadab and Nawaz. और एंड उसामा कोट खाते थे सारे, ठीक है, उनको पिंच देते थे लोग. और ये दोनों जो है ये बड़े, अबरार को वैसे उसमें भी होना चाहिए था. हम तो पीट के वाकई यार वहां पे अबरार को भी होना चाहिए था. We mentioned that a couple of times. So now you've got Abrar and Sufi Mac in the spin bowling reserves. प्लस साइमन सलमान अली आगा. सलमान अली आगा, तो there are enough spin bowlers over there. And you know, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इस सीरीज से ये था कि बाद बांडे पॉइंटेड दिस आउट. उसने कहा कि बैराम भाई हमेशा कहते हो फिफ्थ बॉलर इशू है. साइम अयूब की इस परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं ये अब कह सकता हूं कि फिफ्थ बॉलर इशू नहीं है. सो फिफ्थ बॉलर साइम एंड सलमान. आई एम फाइन विद दैट नाउ. अगर जरूरत पड़ी तो केजी के नॉलेज ऑन टू. केजी नहीं होए, केजी नहीं, कामी जी. केजी तो रबार्ड है. एग्जैक्टली, कामी जी. इसीलिए वो कामी जी, और बोलने का भी ज्यादा मजा नहीं आता. कामी जी सन्नुमी पायण. केजी भी ठीक लगता. अच्छा, किसी एक बंदे को बड़ा मसला हुआ था भाई ट्विटर पे निकनेम से. क्यों ये आप नाम क्यों खराब करते हो, ये इस्लाम के खिलाफ है. मैंने कहा भाई मेरा भी तू खराब कर ले. मैं भी तो बेजा हैमर्स. क्या मतलब क्या हो गया यार. देखो, we're not going to kill off the colloquialism. We're going to be ourselves on हम this show. सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कौन सा उन्हें बेरेट कर रहे हैं. हमारा यूएसपी कंप्लीटनेस है और ऑथेंटिसिटी है. शुगल है. तो हम शुगल लगाते रहेंगे यहाँ पे. नहीं पसंद आता तो भाई ब्लॉक कर दो. मैंने तो कर दिया था उसको ब्लॉक बंदे को. बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं यार. वो पता नहीं, वो झांटू ये वो नाम ना खराब किया कर. मैंने कहा भाई अपनी तरबियत मत दिखा पूरी दुनिया को. चलो, एनीवे, ब्लॉक दैट. अच्छा खैर, लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर शो. नहीं मगर 2 सेकंड. अच्छा, एक चीज, ODI क्रिकेट तो चलो डाइंग फॉर्मेट, व्हाटएवर, स्टिल ब्रीदिंग. पाकिस्तान आर बॉसिंग इट. डू यू सी देम मेकिंग द सेमी? यस. बिकॉज न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और इंडिया है. मैं तो पहले भी कह रहा. आप 2 मैच तो जीत सकते हो उसमें. न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दोनों को हरा देना. यू शुड बीट देम ऑन पेपर. तो यू शुड. लास्ट न्यूज ऑफ द डे यही है कि यार वो वेन्यूज फाइनलाइज हो गए तीनों मैचों के लिए. सो UAE इज द न्यूट्रल वेन्यू फॉर द इंडिया पाकिस्तान गेम. प्रॉब्ली दुबई. 23rd Feb. या 23rd Feb को मेरी बर्थडे के एक दिन बाद वाह, वो वाला मैच होगा. तो देखते हैं किसका अच्छा जाएगा. गिफ्ट दे दियो भाई. दुबई में पाकिस्तान हरा सकता है इंडिया को, बट आई वुड स्टिल से इंडिया हैवी फेवरेट फॉर दैट गेम. ठीक है, मैं तो अभी भी बोलूंगा.
boycott that game. Send a statement that no Statement. one will see coming. Do it. यही टाइम है. वर्ल्ड कप में नहीं फेंक सकते गेंद. नहीं ठीक है. चैंपियंस ट्रॉफी में फेंक You have to win both of your games versus New Zealand and Bangladesh, which I think they can do. दे कैन. न्यूजीलैंड का 50-50 है. बांग्लादेश को तो हराना चाहिए. न्यूजीलैंड वाला जो है ना मैच, वहां पे सारी टेबल्स टर्न होगी. न्यूजीलैंड इतनी अजीब सी टीम है ना बहुत पाकिस्तान अजीब के लिए. है. कभी वो उनको हरा देते हैं और कभी उन्हीं से हार जाते हैं. न्यूजीलैंड हर एक के लिए ही है, इंडिया के लिए भी है. इंडिया के लिए तो खैर बोगी टीम. लेकिन इंडिया ओवरकेम दैट बोगी इन द पाकिस्तान मोर ऑफ्टन देन नॉट डू डिफीट देम इन आईसीसी इवेंट्स. चैंपियंस ट्रॉफी में मार गए थे यार. पता है कराची में खेल रहे होंगे कीवीज को और कराची में आई थिंक हल्का सा ग्रिप करेगा बॉल. सो दैट शुड हेल्प. ठीक है. क्योंकि पाकिस्तान लेकिन न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द बेटर players of spin. हाँ, you struggled with that spin players सारा मिक्स हो गया था. I mean, there's Kane, there's Tommy Latham. Both of those guys are amazing. ठीक है. Yeah, you don't have. और चेपमैन तो हमें चेपता है. चेपमैन पता नहीं खिलाएं उसको हमारे खिलाफ तो खिलाएं भाई. खेलेगा. Yeah, so I mean कराची में वो वाला मैच और पिंडी में है बांग्लादेश. So I'm glad पिंडी को मिल गया यार मैच. जाएं देखने वो वाला. देखते हैं वहां पे पहुंचते हैं. डजंट मैटर किस तरह की सरफेस हो, बांग्लादेश को हराना चाहिए और फिर कराची में न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान को हराना चाहिए. सो यू नो सेमीज तक तो लग रहा है कि सीन है. उसके बाद इट्स अ बिट ऑफ अ शूट आउट. यू जस्ट हूएवर विंस 2 games ऑन द ट्रॉट विंस इट. बट द डिफेंस इज ऑन. ठीक है. इवन दो द टीम स्टिल हैज सम माइनर होल्स, द डिफेंस इज वेल एंड ट्रूली ऑन. एंड यू गाइस लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है, वेयर इज पाकिस्तान's ODI cricket at and how well will they fare in the Champions Trophy. मुकाओ भाई. मुक गए ने चरखे दे गेड़े मुक गए ने. आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बहराम मुझे हर जगह फॉलो करते हैं. हमारे जानी हो तो पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा. 031936025545 इज द नंबर. हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं हमें. उसके अलावा विल सी यू गाइस आफ्टर द टेस्ट सीरीज. नॉट द टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच. नहीं प्रीव्यू भी मिलेगा इन्हें. तुम और मैं आपस में बहुत देर बाद मिलेंगे. इनको तो एक और शो मिल जाएगा. उसके बाद फिर अगले दिन ही आ रहा है प्रीव्यू. रिलैक्स. अल्लाह हाफिज़.